अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें कि सबको मेरी वॉइस आ रही है। वालेकुम सलाम जी, आ Yes, रही है। sir. Salam. Yes. Let me tell when to start. Bajia, you can start the proceeding, please. Assalamu alaikum. I am Wajiha Osman, a Microsoft Learn Student Ambassador, and I am thrilled to unveil an event presented by the Student Counseling and Guidance Bureau in collaboration with Microsoft Learn Student Ambassadors, UET Texla, TRAC, Comtech, and the Computer Technology Society. While we eagerly await our special guest to join us, I'd like to take a moment to share a fantastic opportunity for all the entrepreneurs and individuals contemplating the idea of starting their own business. Allow me to introduce you all to the Founders Hub, a platform that holds immense potential. I'm going to give you an overview what is Founders Hub, how you will going to apply it, and what kind of benefits you will going to get from it. So let's start. Founders Hub is a platform where you apply with any startup idea or any business idea in your mind. It is powered by Microsoft. You will accelerate your startup through technology and expert guidance. It is open to all. It's not about that you are an MLS ambassador and you can only apply if you are an MLS ambassador. You can apply without having an MLS ambassador. It is basically 4 levels. Level 1 is basically the ideation stage. In this stage, you got to approve your project. It is not necessary to have a website or any external source to apply. You just need a problem and a solution which you will going to present. If you're going to get it approved, you will get $1,000 as your credits and much more benefits. Level 2 is all about the development stage. You start building your website, you start making your team, and if you get it approved, you will get $5,000 as your credits. Level 3 is about start gaining your customers, and if you get it approved, you unlock the $25,000 as your credits. And level of 4 is basically you start scaling your project. So, what benefits you will going to get? Benefits is your OpenAI services, including pre-trained models like GPT, Cortex, and DALL-E. You can have personalized guidance from level 2 on topics including the latest in AI, choosing the right products, optimizing infrastructure, and reducing cost. They will help you grow your business by connecting to customers more efficiently with essential tools, tech, and services from Microsoft and our partners, including LinkedIn, GitHub, MongoDB, and more. So let's start how you can apply. That's basically the link I have attached in slides. You can apply it from here. I'm going to show my slides here. Okay. Let me paste here. For this, you need a LinkedIn account. If you don't have any, create your account and start with signing up. My account is actually linked with it. So yeah, here is my LinkedIn profile. Contact email is basically they will take from your LinkedIn profile. You have to tell about your founder journey, where you got your idea and what kind of solution you will going to provide. In the next step, you will tell what kind of startup it is, your project name, your project website, if any you have. If you don't have any project website, go giving any demo link or video link. You have to provide a description of your startup or project here. Tell the value proposition, tell the market, target market, but you have like you are targeting to the teenagers, to the Vijaya slide young. नहीं show हो रही सिर्फ slide show हो रही है वो website show नहीं हो रही Okay, so let me share.
Now it's visible? Yes, yes. Okay. So let me tell again. You have to tell the founder journey, what kind of solution you are going to give, the startup or the project name. If you don't have any website, just click on that demo video link you can give. You have to give the description of the project. It should be very clear so that the other person will know what kind of solution you are going to provide, because on that basis you will going to have your exception or rejection. Number third point is provide the more details, like what kind of step you are in your project. Like mostly people will be in the prototype stage. They will not have any kind of website. So click on that prototype stage and the funding stage. Any Microsoft partner you are working with, if not, then leave it, because this is an optional thing. You have to give a product demo. So product demo should be like not more than 2 to 3 minutes. You have to be very much brief, and you have to be very much to the point that what kind of solution you are going to provide, because they will not have much time to, have that long video and they will, learn from it. So you have to give a very short video here. One last thing you have to do is you have to get your city, postal code, country, region, and submit your application. It will only take 10 minutes to submit your application. So I will highly suggest you all to do that. Now, my slides are visible or not? Yes, visible. Okay. So one of our seniors also applied in that for the Founders Hub, and he got it approved as level 1. And the benefits he got is $1,000 Azure credits, OpenAI ChatGPT 3.5 Turbo and GPT-4 through Azure OpenAI services, also the Microsoft 365 Business Premium and LinkedIn Premium, and much more benefits. So I'd highly suggest to apply it here, and I'm giving that link to scan. Now, I guess it's here or not. Can someone tell? Can you repeat, please? Our guest is here. I believe he says, Mr. Zubair. Okay. See, So let me introduce him. As our Student Counseling and Guidance Bureau is to provide insights, perspective, information, and opportunities to students, our event underscores the future goals of our society, that is, industry academia linkage, career counseling, opportunities to network with industry experts, and open house exhibitions. Now let's welcome our guest, Dr. Rizwan Ghaffar, a seasoned professional in electrical engineering with expertise in digital and wireless communications. He earned his BSc from NAST Pakistan and pursued MS and PhD degree in France. Currently with Samsung Modem R&D, USA, his work focuses on advancing cellular modem technologies. Dr. Ghaffar is also an executive editor and reviewer for esteemed telecommunication journals with numerous awards and publications to his name. Welcome, Dr. Rizwan Ghaffar. Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for giving us this opportunity, or for welcoming us. Thanks for the introduction. So Zubair Zafar, you are here, right? yes, sir. Okay, so would you introduce? आप introduce करेंगे आइको initially, या मैं खुद शुरू कर दूं? Sure, sir. मैं कर देता हूँ. Just a minute. Thank you. Assalamu alaikum. Is my screen visible? Walaikum जी Assalam. Yes, sir. जी visible है, right? थैंक यू. बेसिकली iCode Guru जो है वो सिलिकॉन वैली के प्रोफेशनल्स ने बनाया है, जो कि यूएसए से हैं. बट वी प्रेफर कि हम उर्दू में बात करें, ताकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को जिन्होंने पाकिस्तान से ज्वाइन किया हुआ है उनको समझ आ सके. हमने पहले ट्राई किया था कि हम इंग्लिश में बात करें, लेकिन
एक अच्छी ऑडियंस को समझ नहीं आती है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है, तो इसलिए मैं इसको उर्दू में इंट्रोड्यूस करना पसंद करूंगा। थैंक यू। आई कोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया, ताकि पाकिस्तानी एकेडेमिया और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के दरमियान गैप को ब्रिज कर सके। इसके लिए हमारा ये मोटो है कि हम अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जो दूसरों के पास नॉलेज है हम उससे लर्न करते हैं, एंड एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। आवर मिशन, आई कोड गुरु का ये मिशन है कि एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना। और एम्प्लॉयबिलिटी की जब बात आती है तो इंटरनेशनल एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना, और इसके लिए हम स्टूडेंट्स को हाईटेक स्किल सिखाते हैं, जिनके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस एक्सेट्रा, इस तरह की स्किल्स हैं। इसके अलावा हम आई कोड गुरु के ऊपर इंटरनेशनल मेंटोर से स्टूडेंट्स की मुलाकात करवाते हैं, ताकि वो इंटरनेशनली अवेयर हो सकें, और इसके लिए हम डेडिकेटेडली सैटरडे 9 PM टू 10 PM एक वेबिनार कंडक्ट करते हैं। अगर आप इस वीक ज्वाइन करेंगे तो आपको एक गूगल के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। और फोकस हाउ वी वर्क, इस टाइम पे आईकोड गुरु के 10 सेशंस हो रहे हैं एक दिन में। इस टाइम भी आईकोड गुरु की आईएलटीएस की क्लास हो रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। उसके अलावा एक वीकली वेबिनार होता है और एक वीकली वर्कशॉप होती है। इसी तरह लीड कोड के सेशंस हो रहे होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे लीड कोड को बहुत फरोग दिया जाता है, और इंटरव्यूज के दरमियान लीड कोड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स से उनकी कैपेबिलिटीज चेक करने के लिए। तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चंस जूम सेशंस के अंदर समझाए जाएं। इसके अलावा फ्री आइल्स एंड जीआरई के कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि वो स्कॉलरशिप्स को टारगेट कर सकें, और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको, और मशीन लर्निंग एंड अगेन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इन सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज के ऊपर अवेलेबल होती है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। आईकोड गुरु की कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स की बात कर ली जाए तो आईकोड गुरु ने 400 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। हमारे लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स यूएस गए हैं। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स हासिल किए हैं स्टूडेंट्स ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है जिसका नाम है CS50, उनका एक पजल डे ऑर्गेनाइज हुआ था लास्ट ईयर, और इस साल भी हो रहा है अप्रैल में, अगर आप लोग उससे फेमिलियर हैं। तो उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 21 टीम्स वर द हाईएस्ट परफॉर्मिंग टीम्स इन दैट कंपटीशन एंड दे ऑल वर फ्रॉम आई गुड गुरु। पहले हम एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कर रहे थे हर मंथ लेकिन इस साल हम, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत इंथुजियास्टिक हैं, तो हम 2 हैकाथॉन्स जो हैं वो बच्चों के लिए लेके आते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकें। इसी तरह हम एक हैकाथॉन इस वीक पे ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है जिसका नाम है कोडिंग प्लेस, जहाँ पे पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं, और कुछ चंद मेंटोर्स भी सिलेक्ट करते हैं वो, ताकि वो उन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इस साल 7 मेंटोर्स वर सिलेक्टेड फॉर दैट प्रोग्राम फ्रॉम पाकिस्तान। गूगल कोड जैम एक बहुत प्रेस्टिजियस कंपटीशन है जिसके अंदर 300 प्लस स्टूडेंट्स जो गए थे 2023 के अंदर। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी स्ट्रेंथ में हमने स्टूडेंट्स को सेंड भेजा था वहां पे। उससे पहले 70 स्टूडेंट्स गए थे 2022 के अंदर, और 2021 के अंदर ना होने के बराबर थे। 3 इंटर्न्स वेंट टू इत्तेहाद एविएशन ग्रुप अबू धाबी, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हमने एक हैकाथॉन जीता था, तो इत्तेहाद एविएशन ग्रुप ने हमें इंटर्नशिप के लिए अबू धाबी बुलाया था। थैंक यू। आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं विच इज़ 100% फ्री, www.icodeguru के ऊपर। और अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर वो सब अवेलेबल हैं। मैम ने सर का इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि अगर आपने जिंदगी में वायरलेस चिप्स इस्तेमाल की हैं, चाहे वो वाईफाई की हों चाहे मोबाइल्स की हों, तो आपने डॉक्टर रिजवान गफ्फार के एल्गोरिदम्स यूज किए हैं। He is a NUST alumni who got 4 out of 4 CGPA during his bachelor's and a gold medal। और इन्होंने अपनी जो मास्टर्स एंड PhD है वो फ्रांस से की। इन्होंने कॉलकॉम, सैमसंग और बेशुमार ऐसी बड़ी कंपनियों में काम किया हुआ है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। एंड करंटली ही इज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इंजीनियर इन ब्रॉडकॉम। सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच जुबैर जफर इंट्रोडक्शन का। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं जिस तरह जुबैर जफर ने कहा, माय नेम इज़ डॉक्टर रिजवान गफ्फार, और मैं यहाँ पर आई एम हियर इन मी स्टार्ट द वीडियो। ओके, मैं यहाँ पर बे एरिया में होता हूँ। बे एरिया
जो है ये सिलिकॉन वैली है यूनाइटेड स्टेट्स में। और मैंने मुख्तलिफ कंपनीज में काम किया है, जिस तरह ज़ुबैर ज़फ़र बता रहे थे, जिनमें सैमसंग है, इंटेल है, ब्रॉडकॉम है, मतलब ये सारी ज़्यादातर कंपनीज वायरलेस कम्युनिकेशन पे फोकस है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद यूईटी टेक्सला। मैं यूईटी टेक्सला में 94 यूईटी में आई देयर मैंने ज्वाइन किया था। आई वाज देयर फॉर फ्यू मंथ्स बट देन आई मूव्ड ऑन। सो यूईटी टेक्सला से मेरी एक एफिलिएशन है। My elder brother, he graduated from, he was in mechanical UET 92 session. तो इस वजह से काफ़ी एफिलिएशन है मेरी यूईटी टेक्सला से। और आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। और आपको थोड़ा सा जो मैं अपनी कैपेसिटी में गाइड कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी आवाज़ आप सबको ठीक आ रही है? Yes, sir. परफेक्ट, थैंक यू। राइट, तो आज हम बात करेंगे, ज़्यादातर हमारा फोकस होगा कि हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब्रॉड में, किस तरह हम अब्रॉड में अपने हायर स्टडीज़ के लिए या जॉब्स के लिए बाहर आ सकते हैं। और ज़्यादा फोकस हमारा यूएस पे होगा। और इसकी वजह यह है क्योंकि हम लोग यूएस बेस्ड हैं, हमें यूएस के सिस्टम की समझ थोड़ी सी ज़्यादा है। और एक ये बात भी है कि मतलब हालांकि मैंने पीएचडी फ्रांस से की हुई है, मैंने यूएस से पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं फील करता हूँ कि यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स मच बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनका इनके मास्टर्स, इनका पीएचडी जितना रिगरस है वो हमें दुनिया के और मुल्कों में नज़र नहीं आता। यूरोप में पीएचडीज है, फोकस्ड है, लेकिन आप यूएस की पीएचडी से compete करना मुश्किल हो जाता है। सो आवर फोकस हैज बीन ऑन यूएस। और जिस तरह ज़ुबैर ज़फ़र ने कहा पहले कि हम जनरली जो बात करते हैं अपने फोरम पे स्टूडेंट से, हम उर्दू में बात करते हैं, हम इंग्लिश में बात कम करते हैं। तो इस वजह से मैं भी अपनी टॉक उर्दू में ही दूंगा। तो थोड़ा सा हाईकोर्ट गुरु के बारे में ज़ुबैर ज़फ़र ने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो बेसिकली मैं और डॉक्टर ज़फ़र हैं यहाँ पे सिलिकॉन वैली में जो इस इनिशिएटिव को मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर ज़फ़र शाहिद इज़ पीएचडी इन वीडियो प्रोसेसिंग, और मैंने वायरलेस कम्युनिकेशन में पीएचडी की हुई है। बोथ आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। लेकिन आगे पीएचडीज में ऑफ कोर्स आप एक पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करते हैं। सो दैट वाज आवर फील्ड। जिस तरह आपको बताया गया कि आई कोड गुरु बेसिकली है क्या, ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया, ये इंजीनियर्स हैं सिलिकॉन वैली के, जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका मकसद है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प करना। अगरचे ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड कैन ज्वाइन, लेकिन हमारा फोकस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है। दी एम, एंड अगर आप वहाँ पर देखें, देर आर मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन अब्रॉड, मतलब कोई यूएस में हो सकते हैं, कनाडा में हो सकते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम पाकिस्तान। दैट्स व्हाट आवर फोकस इज। और इसमें हम कोशिश ये करते हैं, हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की यूथ को हेल्प करें। किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं, राइट? अब जिस तरह देखें, हमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की हेल्प करते हैं। हमारे अंदर बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ कंट्री, एक सेंटीमेंट है हेल्प करने का। लोग ज़कात देते हैं, मैंने लोगों को देखा है यहाँ पर, वो इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं कि पाकिस्तान में किसी को घर बना के दें, किसी को किसी गांव में ट्यूबवेल लगा के दें, ज़कात दें। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई जल्जला आ जाता है, तो यहाँ पर लोग कैंपेन्स रन करते हैं, विच इज़ ग्रेट। बहुत बहुत लोग बहुत हेल्प करते हैं। हम जो हैं, अब हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं? तो हमने सोचा कि हमें क्या आता है, मतलब हम चूंकि इंजीनियर्स हैं, तो हम किस डोमेन में हेल्प कर सकते हैं। हम मेडिकल फील्ड में हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं, हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो हमने ये कोशिश की कि हम अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करें उनकी टेक्निकल स्किल्स, राइट? मोर फोकस टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कि हम उनकी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। क्यों इम्प्रूव करें? ताकि हम उनको बेटर प्रोफेशनल्स बनाएं, बेटर प्रोफेशनल्स के जो वो पाकिस्तान में अच्छी जॉब्स कर सकें। और ज़्यादा फोकस ये है कि वो बाहर आ सकें मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और जब मैंने नस से पीएचडी की, तो बैक इन 2004, तो उस वक्त जिस तरह ज़ुबैर ज़फ़र बता रहे थे, मैंने 4 GPA लिया। मैं
अभी मैं पिछले दिनों चेक कर रहा था, देयर आर ओनली थ्री स्टूडेंट्स इन द होल नर्स जिन्होंने अब तक क्यूमुलेटिव जीपीए 4 लिया है. सो आई वाज लकी टू बी वन ऑफ देम. मुझे 3 गोल्ड मेडल्स मिले. बट आई एट दैट टाइम आई डिडंट नो कि मैं यूएस आ सकता हूँ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे. मुझे ये पता था मैं यूएस आ सकता हूँ, मैं अप्लाई करूँ, मैं आइलेट्स दूँ, मैं जीआरई दूँ, मुझे कहीं एडमिशन मिल जाएगा. नस्ट की एफिलिएशन भी है, उस वक्त आइवा स्टेट यूनिवर्सिटी से थी. हमारे स्टूडेंट्स जाते थे कि आप वहाँ पर 1 साल जाएं, थोड़े से आपके पास पैसे हों, यू वुड बी देयर. मतलब उस जमाने में $10,000 थे कि आप आए. फर्स्ट ईयर के आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन एक्सपेंसेस होने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू find jobs like TA-ship, RA-ship, टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंटशिप. लेकिन अभी हम जिस फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो वहाँ बाहर आए एंड दे कम ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स. यहाँ पर उनको स्कॉलरशिप्स मिले, यहाँ पर उनको जब वो पाकिस्तान से यहाँ लैंड करें तो उनके पास फुल स्कॉलरशिप्स हो. तो ये वो चीज़ें हैं जो जिस पर हम फोकस करते हैं और इस पर हम आज ज़्यादा बात करेंगे. हम कोशिश करते हैं, आप देखें ना, दिस इज ऑल अ पैकेज, राइट. मैं मतलब अगर मैं चाहूँ कि किसी स्टूडेंट को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए तो मेरे पास तो फंडिंग नहीं है, मैं एकेडेमिया में नहीं हूँ, आई एम इन इंडस्ट्री, राइट. अगर मैं एकेडेमिया में भी हूँगा, मैं ऐसे किसी स्टूडेंट को तो नहीं फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे सकूंगा. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्रोफाइल इंप्रूव हो, आपका प्रोफाइल ऐसा हो कि आप यहाँ पर पिक हो सकें, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे यहाँ पर बैठ के स्टूडेंट्स को गाइड करके आई कोड गुरु के प्लेटफॉर्म से इसकी हेल्प कर रहे हैं. देर आर मल्टीपल एक्टिविटीज आई कोड गुरु में होती हैं. आजकल 10 सेशंस हैं, कभी 12 सेशंस हो रहे होते हैं. मतलब हम जो सेशंस हैं आई कोड गुरु पे वो एक दिन में 10 से 12 सेशंस होते हैं, राइट. और ये 1 आवर ईच के होता है, तमाम जूम पे होते हैं, कहीं भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है. सारे सेशंस फ्री हैं, राइट. इट्स अ वॉलंटियर बेस्ड प्लेटफॉर्म. हम ना किसी को पैसे देते हैं ना हम किसी से पैसे लेते हैं, राइट. कुछ लिमिटेड स्कॉलरशिप जरूर हम देते हैं बट इट्स टोटली अ फ्री. मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं, विच इज ऑल फ्री. ठीक है. हमारे पास आइलेट्स और जीआरई, अभी भी आइलेट्स के कोर्सेज चल रहे हैं, जीआरई के कोर्सेज रन हो रहे हैं हुए हैं, राइट, जिसमें स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है. ठीक है. हम स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए उनको इंटरनेशनल हैकाथॉन्स पे लेके जाते हैं हम. मतलब इट्स, हम जो है ना पूरा एक पैकेज बिल्डअप करते हैं कि किस तरह एक स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान में पढ़ रहा है, जो कि किसी अच्छी या मीडियम या लोअर रैंक यूनिवर्सिटी से है, किस तरह उसके प्रोफाइल में वो चीज़ें ऐड की जाएं कि उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़े और वो उसका एक्सपोजर इस तरह हो कि वो बाहर आ सके, वो पिक हो सके स्कॉलरशिप्स के लिए, वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करे तो वो, जिस तरह हम कहते हैं ना, मतलब आप लोगों ने सुना होगा एक नॉइस होती है, आपने नॉइस से ऊपर आना होता है, राइट. जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं कि अगर एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं ना तो अराउंड 50-55 स्टूडेंट्स आर नॉइस, राइट. वो मीडियम लेवल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका प्रोफेसर को नाम भी नहीं आता. ठीक है. अब आपने अगर इफ यू वांट टू नो कि आपके प्रोफेसर को आपका नाम आना चाहिए तो आपको उस नॉइस से ऊपर आना है. ठीक है. उस नॉइस से आप ऊपर कैसे आ सकते हैं? कैसे एक प्रोफेसर को, जो दिन में, यहाँ पर एक प्रोफेसर दिन में 3 क्लासेस लेता है, राइट, कुछ क्लासेस में 200 to 300 बच्चे होते हैं, कैसे उस प्रोफेसर को आपका नाम याद होगा? हाउ ही विल रिकॉग्नाइज इट? आज से 10 साल बाद जब उस प्रोफेसर को अप्रोच करेंगे, हाउ ही विल रिकॉग्नाइज यू? तो वो नॉइस से आपने ऊपर आना होता है. तो इसी तरह जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, यू हैव टू कम अप द नॉइस. एक प्रोफेसर के पास 200-300 सीवीज आती हैं, राइट. उनमें अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंडिया से, पाकिस्तान से सीवीज होंगी, रेज्यूमे होंगे. कैसे आप उस नॉइस से ऊपर आएंगे कि प्रोफेसर आपको पिक करे कि उससे बात करनी है? इसी तरह आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, राइट. कैसे आपने, अब लोग कहते हैं आप अपनी सीवी में वो कैच वर्ड्स डालें. मतलब दिस इज, आज से 10 साल पहले भी लोग यही कहते थे, कैच वर्ड्स डालें, राइट, सो दैट जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको पिक करें. इज दिस द राइट वे, राइट? क्या उन कैच वर्ड से आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी? द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपसे, चाहे प्रोफेसर के साथ स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि आपको कोई कंसिडर करे कि मैंने इससे बात करनी है, राइट, आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो उसके लिए हम इस फोरम पे हेल्प करते हैं. ये हमारी कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स हैं जो अभी जुबैर जफर ने बताई. तो इसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, किस चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहता हूँ. हमारे लास्ट ईयर 7 मेंटर्स गए थे कोड इन प्लेस इन स्टैनफोर्ड. अब मैं यहाँ पे बी एरिया में रहता हूँ, मेरे घर से आई थिंक 15 माइल्स दूर है स्टैनफोर्ड, राइट. वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, राइट.
जिसमें एडमिशन लेना इतना मुश्किल है, राइट? मतलब आई हैव अ वेरी गुड रिज्यूमे, लेकिन मेरे रिज्यूमे में स्टैनफोर्ड का नाम कहीं नहीं आता भाई, क्योंकि मैं कभी स्टैनफोर्ड गया नहीं ना। मैं आई वांटेड, लेकिन मैंने स्टैनफोर्ड से कभी कोई कोर्स नहीं लिया, कभी कहीं कुछ पढ़ा नहीं है, राइट? और स्टैनफोर्ड इज सो कम्पिटिटिव, राइट? मेरी बेटी यहाँ पे हाई स्कूल में जाती थी। देर आर 4,000 स्टूडेंट्स एंड शी वॉज सेइंग के 4 years ago one student went to Stanford. All of them want to go into Stanford. ये जो स्कूल है बे एरिया के टॉप स्कूल्स में है, बट गेटिंग इनटू स्टैनफोर्ड इज सो कम्पिटिटिव कि 4,000 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, और 4 साल पहले एक वन स्टूडेंट वाज एबल टू गेट इनटू स्टैनफोर्ड। लुक एट द कंपटीशन, राइट? और हमारे जो है लास्ट ईयर 7 मेंटर्स इस प्लेटफॉर्म से वेंट टू स्टैनफोर्ड टू टीच कोर्सेस, राइट? अब आप इसका इम्पैक्ट देखें, राइट? योर रिज्यूमे हैज स्टैनफोर्ड इन योर नेम, राइट, which my resume doesn't have. आप अपने प्रोफेसर्स के रिज्यूमेस देख लें, who has Stanford in his resume, right? So these 7 mentors जो कि पाकिस्तान से हैं, जो कि मिड टीयर यूनिवर्सिटी से हैं, they taught courses in Stanford, right? इनका कोड इन प्लेस एक प्लेटफॉर्म है. So that's the sort of exposure हम अपने स्टूडेंट्स को दे पाते हैं. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमें पता है कि स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं. इसी तरह हार्वर्ड, राइट? हार्वर्ड का नाम पाकिस्तान में कितने प्रोफेशनल्स के रेज्यूमेस पे है, राइट? तो हमारे 21 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन देयर पजल डे कंपटीशन, जिसमें उन्होंने टॉप स्कोर लिया. सो दिस इज हाउ वी प्रोजेक्ट देम, राइट? कि वो किस तरह उनका प्रोफाइल इंप्रूव हो, किस तरह उनका होराइजन इंप्रूव हो, ठीक है? जब आप स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं, इट्स नॉट ओनली इट्स एडिंग इट टू योर रिज्यूमे, आप एक डिफरेंट वर्ल्ड से एक्सपोज हो रहे हैं. आपको पता चल रहा है कि स्टैनफोर्ड में करिकुलम क्या है, वो पढ़ाते कैसे हैं, क्योंकि फर्स्ट यू गेट सेलेक्टेड इन 7 मेंटर्स को फिर स्टैनफोर्ड ने ट्रेन किया कि आपने पढ़ाना कैसे. सो दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर वी वांट टू गिव, राइट? हमारा फोकस क्या है, राइट? जिस तरह मैंने कहा, हमारा फोकस है कि हम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की हेल्प करें. मतलब आखिर हम ऐसा क्यों चाहते हैं, राइट? आखिर मतलब वी वांट टू हेल्प पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाए? ठीक है, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ये क्यों फील किया, राइट? अब जिस तरह मैं मुख्तलिफ कंपनीज में रहा हूँ, इस वक्त मैं ब्रॉडकॉम में हूँ, मेरी टीम में आई एम द ओनली पाकिस्तानी, राइट? देयर इज वन चाइनीज, वन ईरानियन, रेस्ट ऑल आर इंडियंस. मैं जब पहले इंटेल में था तो मेरी टीम में देयर वाज वन अमेरिकन, मैं एक पाकिस्तानी था, एक चाइनीज, रेस्ट ऑल वर इंडियंस. तो हमने ये यहाँ पर ना सिर्फ मैं, बाकी सारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ये फील करते हैं कि वी आर वेरी लेस रिप्रेजेंटेटिव हेयर इन दीज टॉप कंपनीज, राइट? जिस तरह हम गूगल है, अमेजोन है, एप्पल है, आप इनमें जाकर देखें परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी इंजीनियर्स कितने हैं. पूरी बिल्डिंग में आपको 3-2 मिल जाएंगे, राइट? विच बिल्डिंग हाउसेज थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर. तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कम है, राइट? हम कैसे इन टेक जाइंट्स में आ सकते हैं, हम कैसे और ये मैटर क्यों करता है? मतलब अगर मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गूगल में आए तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अमेजोन में आए या एप्पल में आए तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? इंडिविजुअल्स को तो फायदा होगा, बिकॉज इट ग्रोज देयर कैरियर, इट जस्ट चेंजेस देयर लाइफ, राइट? लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या फायदा? ठीक है, इससे पाकिस्तान को इकोनॉमिक इम्पैक्ट का फायदा होता है, ठीक है? जिस तरह हम ये देखते हैं कि अभी ये जो बड़ी कंपनीज हैं, राइट, अमेजोन है, या एप्पल है, या गूगल है, आपको पता है कि पाकिस्तान में इनमें से कितने कंपनीज के ऑफिसेज हैं? आप में से कोई बताएगा? आप लोगों को अंदाजा है गूगल का ऑफिस पाकिस्तान में कितने, गूगल के या अमेजोन एप्पल के पाकिस्तान में कितने ऑफिसेज हैं इस वक्त? सर कोई भी नहीं है, आई थिंक सो. जितना मेरे नॉलेज में बात है कि इनका ऑफिस कोई नहीं था. माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन करना था, लेकिन हुकूमत ने उन पे टैक्स इतना लगाया था कि उन्होंने मांगे थे पैसे ऑफिस ओपन करने से अच्छा, पहले, तो उन्होंने जाके इंडिया में ओपन कर लिया था. दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बिल्कुल, इनका ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, राइट? नहीं है सर, पाकिस्तान में इनका कोई भी ऑफिस नहीं है. दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा. लेकिन क्यों नहीं? मतलब आखिर क्या वजह है? मतलब जब मैं आया तो मैंने फील किया, मतलब इट्स अ फीलिंग कि मैंने कहा शायद इनका बायस है पाकिस्तान से, मतलब शायद हमें ये पसंद नहीं करते, इस वजह से ऑफिस नहीं खोलते. एक जमाने में मैं ये भी सोचता रहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है. मतलब पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स रहे हैं सिक्योरिटी के, क्या ये वजह है? लेकिन आपको पता है इन सारी कंपनीज के ऑफिस इसराइल में है. इसराइल इज स्टिल इन वॉर, राइट? इसराइल अभी भी वॉर में है. इसराइल हैज मोर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स देन पाकिस्तान.
तो क्या ये फेवर करते हैं इसराइल को ओवर पाकिस्तान के? इसराइल में ऑफिस खोल लेते हैं और पाकिस्तान में नहीं खोलते? मैं इंटेल में था, इंटेल का ऑफिस मलेशिया में है। मैं भी ब्रॉडकॉम में हूँ, ब्रॉडकॉम का ऑफिस मलेशिया में है। तो इनके ऑफिस मलेशिया में क्यों है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं खोल रहे? ठीक है, इसकी वजह यह है कि इनको पाकिस्तान में टैलेंट नजर नहीं आता। ये कंपनीज आर, मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, दे आर ड्रिवन बाय मनी। इनको जहां पर प्रॉफिट मिलेगा ना, दे विल गो देयर एंड ओपन ऑफिसेस। इस वक्त गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस इंडिया में खोला है। क्या इसकी ये वजह है कि सुंदर पिचाई इंडियन है, दैट्स व्हाई ही ओपन गूगल्स ऑफिस, बिगेस्ट ऑफिस इन इंडिया? ऐसा नहीं है, राइट। ये प्लान पहले से था, वो तो अभी मतलब आप ऑफिस प्लान करते हैं, इट्स ईयर्स प्रोसेस। इसकी वजह यह है कि जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मेरी कंपनी में अगर मेरी टीम में 95% इंडियंस हैं, तो क्या ये चीज कंपनी एग्जेक्टिव्स को नजर नहीं आती? जब उनको ये नजर आती है तो वो ये सोचते हैं कि यार ये इंडियंस, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, ये कंपनीज रन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऑफिस इंडिया में खोल लें। ठीक है, और ये जो इंजीनियर्स हैं इनको हम 75% या 60% पे इंडिया में रखें, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, राइट। सो यू डोंट पे दैट मच। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, यहाँ पर पे स्टैंडर्ड ज्यादा है, तो उनको ज्यादा पे करना पड़ता है। देन दीज कंपनीज स्टार्ट ओपनिंग ऑफिसेज इन कंट्रीज जहां पर इनको नजर आता है कि टैलेंट भी है और वहां पर वो अपने ऑफिसेज मेंटेन कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर गूगल पाकिस्तान में ऑफिस खोले और यहाँ से इंजीनियर्स भेज दे पाकिस्तान, तो उसको क्या फायदा हुआ? फिर तो वो इनको यहीं रखेगा। ठीक है, उसको ये फायदा है कि वो पाकिस्तान में ऑफिस खोले, यहाँ से एक बंदा पाकिस्तान भेज दे कि आप इस ऑफिस को मैनेज करें, और उस ऑफिस में वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स हायर करें। दैट्स वेयर दे गेट द प्रॉफिट, राइट। तो ये एक कैपिटलिस्ट ओवरऑल सिस्टम है जो इस तरह चल रहा है। तो बेसिक वजह, मतलब देर आर मल्टीपल रीजंस, लेकिन वन ऑफ द प्राइम रीजन इज कि इन कंपनीज को नजर नहीं आता कि पाकिस्तान टेक्निकल मैप में कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज अननोन है। अब मैंने नस्ट से किया हुआ है, नस्ट हालांकि इज मतलब दुनिया की टॉप 400 में थी, 100 में है, लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि लोग जाके रैंकिंग नहीं देखते। टॉप 400 में वैसे भी आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग जाके रैंकिंग्स नहीं देखते, राइट। उनको नजर आता है कि अच्छा ये पाकिस्तान से था, ये नस्ट से था, अच्छा नस्ट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह मैं जब फ्रांस में पीएचडी कर रहा था, तो मेरा प्रोफेसर जो कि कनाडा से थे, उनके ग्रुप में ज़्यादातर पाकिस्तानीज थे। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपोजर हो गया था। ही न्यू कपल ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो उनके पास आए, मेरे से पहले एक स्टूडेंट थे, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ दैट ही बिल्ड द रेपुटेशन। फिर उन्होंने मुझे रखा, फिर उन्होंने और पाकिस्तानी रखे। देन ही गेव दैट अंडरस्टैंडिंग कि नहीं नहीं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो यू हैव टू ब्रेक दैट बैरियर, राइट। पहला स्टूडेंट, जिस तरह अगर मैं इस वक्त मुझे कहीं नैम्बिया से सीवी आ जाए किसी स्टूडेंट की, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ पढ़ाते कैसा है, उनके स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो दैट्स द हेजिटेशन दैट कम्स इन। तो इन कंपनीज में ये हेजिटेशन है, दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट ये कंपनीज पाकिस्तान में ऑफिस नहीं खोलती। ठीक है, और ये जो मैं लास्ट पॉइंट लिखा है, फैंग, फैंग यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है, शायद आप लोगों को भी इसका पता हो। मतलब इट्स फैंग इज, एफ इज फॉर फेसबुक, अभी खैर उसने नाम अपना मेटा रख लिया है, बट देन इट्स एप्पल, इट्स amazon, इट्स नेटफ्लिक्स एंड गूगल, राइट। ये वो कंपनीज हैं जो यूएस में लोग जाना चाहते हैं इन कंपनीज में, राइट। इनकी, ये वो कंपनीज हैं जो यूएस इकोनॉमी को गवर्न कर रही हैं। ठीक है, इनका आप एप्पल को देख लें, राइट, अभी टेस्ला भी इनमें आ गया है। मतलब ये वो कंपनीज हैं जो यूएस की इकोनॉमी रन कर रही है। जिस दिन एप्पल का स्टॉक डाउन होता है ना, उस दिन यूएस का स्टॉक डाउन होता है, और उस दिन पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट डाउन हो जाती है। लुक एट द इम्पैक्ट, जस्ट वन कंपनी, राइट। उनका कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फोन हीट अप हो जाए, या कोई उनके सेल्स में आए कि जी iPhone 15 इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड, राइट। तो उनके उनके रेवेन्यूज हिट होने के चांसेस हो, तो यूएस स्टॉक मार्केट उस दिन डाउन होती है, और उस दिन वर्ल्ड स्टॉक मार्केट डाउन हो जाती है। दिस इज द इफेक्ट। ठीक है, अभी हम आईएमएफ के पास जाते हैं $1 बिलियन लोन के लिए, राइट। आप इमेजिन करिए अगर इन कंपनीज के ऑफिस पाकिस्तान में हो, हाउ मच foreign exchange they would pump into Pakistan, right, for their profit, but in the end we will get help. So this is our overall objective, right. हम हेल्प करना चाहते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, लेकिन उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो, बट इट्स नॉट स्टूडेंट्स हेल्प। वी कैन हेल्प पाकिस्तान टू
टू बी विजिबल ऑन द टेक्निकल लैंडस्केप, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड मैं आगे जाके दिखाऊंगा, और स्टूडेंट्स हैव बीन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग वेरी वेल, राइट। तो जिस तरह मैंने इस प्रेजेंटेशन का ज़्यादा फोकस हमारा यूएस बेस्ड स्कॉलरशिप्स है। हम चाहते हैं कि आप लोग यूएस आए, स्कॉलरशिप्स के लिए आए। जिस तरह मैंने बताया, मैंने पीएचडी फ्रांस से की थी, राइट। लेकिन जब मैं यहाँ पर भी देखता हूँ ना, एक यूएस पीएचडी और मुझे पीएचडी, मुझे एक डिफरेंस फील होता है। ठीक है, आई फील कि मुझे पीएचडी यूएस से करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इनका जो कोर्स वर्क है, जिस तरह जहाँ जहाँ पर ये पढ़ाते हैं, इट इज़ मच डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इवन यूरोप, राइट। यूरोप के मुकाबले में यूएस के स्कॉलरशिप्स, यूएस की स्टडी सिस्टम बहुत अच्छा है। आप लोगों को थोड़ा सा यूएस के स्टडी का पैटर्न या इनका पता है तो कुछ शेयर करेगा कि आपको कैसा लगता है यूएस की यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की या यूरोप की यूनिवर्सिटीज से, इनका क्या कंपैरिजन है? आप लोग किस तरह कंपेयर करते हैं? मतलब लेट से यूएस की जो टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज को हम छोड़ देते हैं, स्टैनफोर्ड है, एमआईटी है, जॉर्जिया टेक है, इनको तो छोड़ देते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? ये यूनिवर्सिटीज क्यों बेहतर हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज से? सर अस्सलाम वालेकुम। मेजर जो सलाम। मसला है, सर मेरे हिसाब से इसके अंदर उनका रिसर्च इम्पैक्ट जो होता है पूरी दुनिया के लिए लेवल पे होता है। हमारी यूनिवर्सिटीज कोई रिसर्च करती हैं तो वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लेवल पे या एक सिनेरियो बेस के लिए होता है, पर यूएसए की यूनिवर्सिटीज रिसर्च करती हैं वो वर्ल्ड लेवल पे इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा, नहीं, दैट्स राइट, बिल्कुल, दैट्स वन ऑफ द रीजन। बाकी कोई बाकी कोई शेयर करना चाहेंगे मेंबर अपना? आई थिंक कि जो कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी, एकेडमिया और इंडस्ट्री की, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इंडस्ट्री काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से इंटर्नशिप्स के थ्रू और प्रोफेसर्स को फंडिंग और प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से जो लिंक है यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का, एक तो वो रहता है कंटिन्यूअस, और जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो डायरेक्टली अप्लाई भी कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो स्टार्टअप्स जो हैं यूएस में, वो काफ़ी ज़्यादा हम देखने में आते हैं। मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स जब वो कंप्लीट करते हैं अपनी स्टडीज, तो वहाँ पे स्टार्टअप बहुत ज़्यादा होने की भी एक वजह ये भी है। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया, राइट। मतलब अगर आप दुनिया में स्टार्टअप्स देखें, राइट, जो स्टार्टअप शुरू हुई, जिसमें अभी आप पिछले कुछ ईयर्स में देख लें, राइट, जिस तरह टेस्ला वाज अ स्टार्टअप, राइट, इन्होंने स्टार्टअप शुरू की, फिर उबर थी, फिर फेसबुक है, ये दीज आर द कंपनीज जो कि स्टार्टअप्स बनी, एंड देन अभी ये दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, राइट। इनमें से कितनी कंपनीज ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई, राइट, कितनी कंपनीज यूरोप में शुरू हुई? मतलब यूनिवर्सिटीज तो हर जगह हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, तो ऐसा क्या वजह है कि ये सारे स्टार्टअप्स जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं वो यूएस में शुरू होते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर बे एरिया, जिसको हम सिलिकॉन वैली यूएस में कहते हैं, यहाँ से ये शुरू होते हैं। टेस्ला का हेडक्वार्टर इधर है, अभी उन्होंने टेक्सास मूव किया है, बट देर हेड मतलब दे स्टार्टेड हेयर। फेसबुक यहाँ से शुरू हुई, उबर यहाँ से शुरू हुई, मतलब यू लिस्ट दुनिया की जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड हेयर, राइट। इसकी वजह यह है कि दे हैव अ सिस्टम, इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह अभी बिलाल कह रहे थे कि कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटीज़ में और इंडस्ट्री में, राइट। और दूसरा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अब जिस तरह मैंने पीएचडी की यूरोप से 3 इयर्स, राइट, आई डिड पीएचडी कंप्लीटेड, मतलब मास्टर्स किया, उसके बाद पीएचडी 3 इयर्स में की। क्या मैं इतना एक्सीलेंट था कि मैंने 3 साल में पीएचडी कर ली? ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आप 3 साल में पीएचडी नहीं कर सकते। इट इज सो रिगरस, राइट। यहाँ पर कोर्स वर्क इतना रिगरस है, दे एक्सपेंड योर नॉलेज। बाकी जगह, मतलब एटलीस्ट इन यूरोप जहाँ मैं एक्सपोज हुआ, दे मतलब उनके पीएचडी ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं, बट दे फोकस ऑन वन एरिया। एक एरिया में यू बिकम वेरी एक्सपर्ट, बट वो आपको वो ब्रेथ नहीं दे पाते, क्योंकि उनका कोर्स वर्क, यहाँ पर आप जब तक पीएचडी कर रहे होते हैं, 2 आपके मास्टर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, मतलब यू डू सो मच ऑफ कोर्स वर्क, दे फोर्स यू टू डू इट। आपने वो क्लासेस लेनी है, आपने वो क्लासेस पास करनी है, आपने पीएचडी क्वालिफायर देना है। सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ रिगरस कोर्स वर्क यू गो थ्रू। फिर यहाँ पर मतलब आप अब जो बुक्स हम पढ़ते हैं, ज्यादातर दे आर रिटन बाय प्रोफेसर है, राइट। अब आप इमेजिन करें कि जिस प्रोफेसर ने वो बुक लिखी है वो आपको पढ़ा रहा है, या उसका कोई स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा है,
या उसका कोई कुलीग आपको पढ़ा रहा है, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस, राइट? तो यहाँ पर जो education system है which they have developed over years, it is much better than rest of the world, right? That's why they are leading, right? और वो अपने एजुकेशन सिस्टम में, अब स्टैनफोर्ड क्यों इतनी कम्पिटेटिव है, राइट? अब यहाँ पर आप स्टैनफोर्ड बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में चले जाएं तो उनके बाहर ऑनर रोल्स होती है, हमारी भी यूनिवर्सिटीज के बाहर होती हैं। इनके बाहर ऑनर रोल्स में क्या लिखा होता है कि ये नोबेल प्राइज विनर्स हैं हमारे। मतलब लुक एट द अचीवमेंट्स जो वो अपना पुट अप करते हैं, ये हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मतलब आप स्टैनफोर्ड चले जाएं, दे डू अ लॉट ऑफ फोकस ऑन स्पोर्ट्स आल्सो, कि ये हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये हमारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं। सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ डिफरेंस दैट क्रिएट। इसलिए हम चाहते हैं और हम ये कोशिश करते हैं, अब जब हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते हैं, यूरोप भी चले जाते हैं, कनाडा भी चले जाते हैं, बट वी फोकस एंड गाइड देम टू कम टू यूएस, राइट? तो अगर हमने यूएस आना है तो हमें क्या चाहिए, right? तो क्या वो चीज़ें हैं जो हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, और जो हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? हम उनकी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? इसमें देखें, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी सारी अच्छी हैं, ठीक है? नस्ट है, टेक्सला, यूटी टेक्सला है, फास्ट है, लेकिन अब चूंकि हम इंडस्ट्री में ना, हमें थोड़ा सा बेहतर पता है कि वो गैप क्या है इंडस्ट्री और एकेडेमिया में जो फिल हो जाए, तो देन यू आर बेटर पोजीशन फॉर जॉब्स, यू आर बेटर प्रोफेशनल्स, राइट? आपकी वो कौन सी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो ज़्यादा फोकस की जाए तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं, ठीक है? हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। फिर हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कंपटीशंस में लेके जाते हैं। ये क्यों हम लेके जाते हैं? ताकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़े, ठीक है? हम ये इनकी हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट पैकेज प्रिपरेशन में। मतलब मैं खुद लोगों के रिज्यूमे, उनके एसओपीज, उनके लेटर ऑफ रेफरेंसेस रिव्यू करता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक एक चीज़, इवन जो उन्होंने ईमेल करनी होती है ना स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स को, वो भी रिव्यू होती है। वी डोंट लीव इट टू स्टूडेंट कि आप जो दिल में आ रहा है लिख के प्रोफेसर को भेज दें। जब प्रोफेसर रिप्लाई करता है तो अब आपने जो रिप्लाई करना है वो भी रिव्यू होता है, ठीक है? सो दैट इज़ वेयर वी प्रिपेयर। फिर हम आइलेट्स और जीआरई की फ्री क्लासेस रन करते हैं। इससे पता है, मतलब it gives an initiative to the students. Otherwise IELTS की बड़ी एकेडमीज है, राइट? हम उनसे बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उनकी एक फीस है, राइट? और जो स्टूडेंट है पाकिस्तान का, नॉर्मल स्टूडेंट, चूंकि वो अभी, मतलब आप में से कुछ बहुत मोटिवेटेड होंगे हमने यूएस जाना है या हमने बाहर जाना है, कुछ अभी सोच रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे नहीं अभी थोड़ा सा देखता हूँ, पहले मैं एक जॉब शुरू कर लेता हूँ, देन आई विल गो, ठीक है? तो इसमें एक चीज ये भी आ रही होती है कि इन कोर्सेज की प्रिपरेशन की एक फीस है, राइट? आप इंटरनेट पे जाके प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसकी एक फीस है जो स्टूडेंट्स अवॉइड करना चाहते हैं टिल द टाइम दे आर वेरी फोकस्ड, और वो चाहते हैं कि हमने ये जाना है। सो यहाँ पर ये फ्री क्लासेस बहुत हेल्प करती हैं उन स्टूडेंट्स को पुश करने के लिए, चलो मैं क्लास लेके देखता हूँ, उसके बाद फिर देख लूंगा अगर आइलेट्स देना है या नहीं देना, ठीक है? आइलेट्स दे दिया, चलो अब मैं देखता हूँ, अच्छा स्कोर भी अच्छा आ गया, देन द स्टूडेंट गेट्स पुश्ड। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इनिशियली नहीं सोच रहे थे कि उन्होंने बाहर आना है, एंड दे स्टार्टेड कि अच्छा चले हम देखते हैं हाउ इट गोज, एंड देन दे आर हियर नाउ। मैं आगे जाके उसके बारे में भी बात करूंगा। तो ये 4 पॉइंट्स इन पे मैं एक फोकस करता हूँ। सबसे पहले कि जी हमने हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल स्किल्स बढ़े, राइट? कैसे बढ़े आपका अब जिस तरह देखिए, जब मैंने बैचलर्स किया था, मैंने अपना रिज्यूमे बनाया था, उसमें मैंने क्या क्या लिखा था, ठीक है? मतलब देखें, मैं जब एक प्रोफेसर या एक कंपनी आपका रिज्यूमे रिव्यू करेगी, उसमें क्या देखेगी? क्या वो देखेगी आपके मैट्रिक के कितने मार्क्स थे? क्या वो देखेगी आपके एफएससी के कितने मार्क्स थे? मतलब हम लिख देते हैं लेकिन कोई नहीं देखता, ठीक है? टिल द टाइम आपने मैट्रिक में टॉप किया है, बोर्ड में कोई पोजीशन लिया, दैट इज समथिंग टू मेंशन, राइट? अदरवाइज मार्क्स अच्छे ही हैं तो आप, मतलब देखिए, एवरीथिंग इज सीक्वेंशियल, राइट? आपके अच्छे मार्क्स आए मैट्रिक में तो आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिला, राइट? और आपने प्री इंजीनियरिंग की या कोई अच्छा फील्ड लिया, उसके बाद आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में गए। मतलब यूटी टेक्सला इज कम्पिटेटिव, राइट? इनका मेरिट बड़ा हाई है। तो अब आप जब अगर आप यूटी टेक्सला से ग्रेजुएट करें, यू डोंट नीड टू टेल समवन कि आपके मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स अच्छे थे, ठीक है? अब पीपल विल लुक कि आपका यूटी टेक्सला में क्या रिजल्ट था, क्या जीपीए था आपका, ठीक है? और आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या किया था। दीज आर द टू थिंग्स दैट पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, और लोग सिर्फ इसको देखते हैं, इसके अलावा और चीज़ों को नहीं देखते। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लिखना शुरू कर दें, मैंने कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ा था, मैंने वायरलेस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, मतलब इट इज़ इररेलेवेंट। लोगों को पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है,
दे आर नॉट इंटरेस्टेड के, और आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक आधे यही का भी सब्जेक्ट होता है, तो दे वोंट फोकस ऑन दिस। अब फिर रिज्यूमे में आप लिखेंगे, अपना नाम लिख दिया और ये दो चीजें लिख दी, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, राइट? मतलब लोग सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स लिख देते हैं। अगेन, दिस इज नॉट रेलिवेंट, राइट? हर एक को पता है कि जो कोर्स वर्क है उसमें एक प्रोजेक्ट होता है, और जारी बात है सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपका कोई ऐसा तो नहीं होगा, मतलब जनरली हम उसी तरह की चीजें करते हैं जो लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ये चीजें लिख देते हैं, बट दे डोंट क्रिएट एन इम्पैक्ट। इससे रेज्यूमे बड़ा हो रहा होता है। हम चाहते हैं कि हमारा रेज्यूमे 4 पेजेस का या 3 पेजेस का हो, बट उसमें दिस इज ऑल इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो लोग नहीं देखते। हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि आप देखें, आप हम उनके जब उनके रिज्यूमे में इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कंपटीशंस जाते हैं कि मैं इस हैकाथॉन में गया, ठीक है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मेरे साथ एक इंटरनेशनल टीम थी, एक जर्मनी से था, एक ऑस्ट्रेलिया से था, एक इंडिया से था, एक अमेरिका से था, एंड दिस इज व्हाट वी डिड। दिस इज नोटिसेबल, राइट? कि पाकिस्तान में रहते हुए यू आर कमिंग अप टू एन इवेंट विच इज इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड, और जहां पर आपने परफॉर्म किया, एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स प्राइजेस भी ले जाते हैं कि आपने ये प्राइज लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन है। सॉरी। फिर हमारे स्टूडेंट्स को हम ये कहते हैं कि वो मतलब हमारे स्टूडेंट, हमारी जो जो क्लासेस हो रही हैं ये बेसिकली मॉडरेटर्स पढ़ाते हैं, और वो स्टूडेंट्स ही होते हैं जो जो कुछ क्लासेस लेते हैं, जिस तरह आईलेट्स है। एक स्टूडेंट ने हमारी क्लास ली, उसने आईलेट्स दिया, उसका 7.58 बैंड आ गया, नेक्स्ट क्लास फिर उन्होंने पढ़ाई। ठीक है, तो फिर हम उनका वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऐड करते हैं रेज्यूमे में कि इन्होंने ना सिर्फ चीज़ें की बल्कि इन्होंने पढ़ाया भी है, एंड दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि प्रोफेसर्स को बेसिकली क्या चाहिए होता है, टीएशिप और आरएशिप की पोजीशंस होती है ना उनके पास, टीचिंग। जब उनको ये देखते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, और इसकी जब हमारे स्टूडेंट्स, मैं आपके जाके रिज्यूमे शेयर करूंगा कि उसमें उन्होंने फेसबुक के, यूट्यूब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक्स डाले होते हैं, हमारे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, तो उन्होंने वो लिंक डाले होते हैं कि ये कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। दैट गिव्स देम एन एक्सपोजर, राइट? फिर हम अपने स्टूडेंट्स को, जिस तरह आप लोगों को भी पता होगा, हम बहुत एनकरेज करते हैं कि आप लिंक्डइन पे, मीडियम पे जाएं, टेक्निकल आर्टिकल्स लिखें, बी एक्टिव, राइट? क्योंकि प्रोफेसर जहाँ पर जब आपका रिज्यूमे खोलते हैं ना, अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल है, वो फौरन वहां जाके देखते हैं कि आप लिंक्डइन पे क्या कर रहे हैं, हाउ मच एक्टिव यू आर, आप कुछ लिखते हैं, आप कुछ कमेंट करते हैं। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को जाकर देखें अगर, तो दे मतलब हम उनको इनकरेज करते हैं, उनकी एक महीने में 1 या 2 पोस्ट होती हैं, दे राइट टेक्निकल पोस्ट, राइट? दे राइट देयर अचीवमेंट्स कि वो हैकाथॉन में गए थे, वहां इन्होंने ये परफॉर्म किया, ये प्रोजेक्ट किया, दे टेक रिकमेंडेशंस जहां से उनको हेल्प करते हैं। फिर अब इस सिलसिले में एक हेल्प ये होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनको जो लेटर ऑफ रेफरेंसेस मिलते हैं वो इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखें, अब मैंने अगर नस्ट से पढ़ा, ठीक है, मैंने तो अपने प्रोफेसर से ही पढ़ा, अब मैं मुझे लेटर ऑफ रेफरेंसेस चाहिए, मैं जाऊंगा एक प्रोफेसर जिससे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी उससे ले लूंगा, एक प्रोफेसर जिनसे मैंने फिजिक्स पढ़ी थी उससे ले लूंगा, और एक प्रोफेसर जो मेरे साथ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में थे उससे ले लूंगा। दे आर रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन सिग्निफिकेंस कम हो गई, दे आर मोनोटोनस, राइट? एक यूनिवर्सिटी, मतलब, एंड द पीपल फील कि जिन प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया है वो आपको कितना जानते हैं। क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, वही मैं आपको बात कर रहा था ना, नॉइस है, नॉइस से आप ऊपर आते हैं। एक ही जैसे लेटर्स है, एक ही जैसी यूनिवर्सिटी है, मतलब इट रिड्यूसेस द सिग्निफिकेंस। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक एक लेटर ऑफ रेफरेंस जरूर आपकी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, प्रेफरेबली जिसके साथ आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है, लेकिन बाकी लेटर ऑफ रेफरेंसेस इंडिकेट करने चाहिए दैट यू आर मच अबव जस्ट अ यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट, जहां पर ये इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, कोडिंग कंपटीशंस हेल्प करते हैं, बिकॉज यू वर्क विद अदर प्रोफेशनल्स जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ के एकेडेमिया में हैं, जो इंडस्ट्री में है, जिनसे आपको जिनसे आपको लेटर ऑफ रेफरेंसेस मिलते हैं। सो दिस इज ओवरऑल पैकेज, राइट? जिसको जो इम्प्रूव करता है। फिर हम, जैसा मैंने आपको बताया, हम डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं, राइट? SOPs, LOR, स्टार्टिंग, मतलब एवरी डॉक्यूमेंट गेट्स रिव्यूड बाय बाय आवर टीम, जिसमें मैं भी हूँ, जिसमें डॉक्टर जफर भी हैं, जिसमें और प्रोफेशनल्स भी हैं। एवरी डॉक्यूमेंट गेट्स रिव्यूड, देयर इज नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट जो हमारे स्टूडेंट सबमिट करें जो रिव्यू ना हुआ हो, जिसपे कमेंट्स ना हुए, जिसको इम्प्रूव करने की कोशिश ना दी की हो। ये मैं आपसे एक शेयर करता हूँ, एक ईमेल, राइट? ये नस्ट के स्टूडेंट है, चूंकि मैं नस्ट से हूँ, तो नस्ट का एक प्रोग्राम है जिसमें मेंटरशिप वो देते हैं कि मुझे एक स्टूडेंट वो असाइन करेंगे कि आप इसको मेंटर करें। नाउ दिस स्टूडेंट हैज अ क्यूमुलेटिव JP ऑफ 3.84, ठीक है, ये सीख से हैं। अब इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है फॉल 2024 के लिए, एडमिशन के लिए। अब इनकी एप्लीकेशन लिखें कि मैं नस्ट यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं डबली में वायरलेस कम्युनिकेशन में हूँ, अप्लाई करना चाह रहा हूँ, PhD करना चाह रहा हूँ, ये लास्ट पढ़े।
CV उन्होंने अटैच की है। माय रिसर्च एक्सपीरियंस इंक्लूड्स 4 कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस एंड 1 जर्नल पब्लिकेशन। मतलब अमेजिंग, राइट? आपने ऑफ कोर्स इनको एक्सपोजर मिल गया कि कोई प्रोफेसर जिनके साथ ये थे, फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनके कोई कनेक्शंस थे, वो कोई रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने उसको उसमें इंक्लूड कर दिया होगा, एंड देन दैट्स हाउ ही वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन इट। बट लुक एट हिज, मतलब आप इसकी इनकी अचीवमेंट्स देखें, राइट? ही इज नॉट फ्रॉम आई कोड गुरु, राइट? ये हमारे स्टूडेंट नहीं है, बट ही इज नॉट, ही जब मेरी इनसे बात हुई, ही हैज नॉट येट गॉट अ सिंगल रिप्लाई। किसी भी प्रोफेसर ने इनको रिप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? दिस ईमेल इज नॉट ड्राफ्टेड वेल। आप इसका देखें, एप्लीकेशन फॉर फॉल 2004 PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक प्रोफेसर को रोजाना इस तरह की 20 ईमेल्स आती हैं, राइट? प्रोफेसर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, फर्स्ट थिंग ही नोटिस पाकिस्तान, PhD मशीन लर्निंग। अच्छा, मैंने आपके साथ PhD करनी है, ओपनिंग्स हैं लैब में। दिस इज द पॉइंट 90% प्रोफेसर स्टॉप, राइट? एंड दे प्रेस द डिलीट बटन, राइट? क्योंकि नथिंग केम एज इम्प्रेसिव, राइट? उनको तो टाइम ही नहीं मिला कि वो इस तरफ लेके जाएं और इसको करें, राइट? ये ईमेल है जो, अब ये ईमेल है जो हमारे एक स्टूडेंट ने लिखी, राइट? ये उन्होंने खुद नहीं लिखी। इट वाज इट वेंट थ्रू द प्रोसेस, मल्टीपल रिव्यूज कि आपने लिखना क्या है। आप इनका सिर्फ सब्जेक्ट पढ़े, राइट? PhD कैंडिडेट, जाहिर बात है, ये तो आपने उसको बताना है। क्यूमुलेटिव GPA बता दिया, GRE और IELTS का स्कोर बता दिया। अब जब अब पिछले देखें, क्यूमुलेटिव GPA 3.84 था, यहाँ पे क्यूमुलेटिव GPA कम है, लेकिन GRE का स्कोर अच्छा है, IELTS भी किया हुआ है। तो यहीं से ही प्रोफेसर को अंदाजा हुआ कि भाई ही इज इंटरेस्टेड, इसने तो ये वाले काम किए हुए जो जो मैंने इससे पूछना था, आपने IELTS किया या नहीं किया। देन ही कम हियर। इन्होंने ये नहीं लिखा हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू आर फीलिंग वेल, मतलब यू डोंट मीन इट, राइट? तो आप वो चीजें लिखी क्यों रहे हैं जो कस्टमरी है, जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है स्टेज पे, राइट? उन्होंने सिर्फ ये लिखा मैंने ये किया है एंड 4 पॉइंट्स, राइट? उन्होंने कहा नो पब्लिकेशन। उन्होंने कहा मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये था, ठीक है, ये मैंने डीप लर्निंग की एक स्टडी ग्रुप में इन्वॉल्व था, और ये 2 पॉइंट्स देखे, राइट? ये इन्होंने ये 2 पॉइंट्स इनको वंस ही ज्वाइंट आई कोड गुरु यहाँ से उनको मिले कि इन्होंने इंटरनेशनल हैकाथॉन में इसमें पार्टिसिपेट किया, ये उनका वर्क है, ये उनके ऑनरेबल मेंशन है। फिर उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि आई कोड गुरु इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, राइट? वो स्टूडेंट्स जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वहां पर उन्होंने C++ और पाइथन के कोर्सेज पढ़ाए, राइट? Just 4 points, and this student is here now. वो माशाल्लाह अभी he is here doing his PhD. This was in 2023 admissions के लिए थे, and he came last year. So that's the difference that we try to create, right? इन दोनों emails में आप difference देखें and the content देखें, right? ये 2 contents are very important, right? मतलब आप अदरवाइज और क्या डाल सकते हैं अपने, मतलब ये वो चीजें जो आपके रिज्यूमे में भी होंगी, बट इन योर इनिशियल इंट्रोडक्शन व्हाट यू कैन इंक्लूड, दैट इज वेयर इट मैटर्स, राइट? कि यहाँ पर अब स्टूडेंट आप पिक नहीं हो जाएंगे इस ईमेल से, बट प्रोफेसर विल रिप्लाई एंड विल आस्क more questions, or will ask for a meeting, or will ask for an interview, right? It would help you to get to your next level. डॉक्टर जफर शाहिद मेरा हाल बात करना चाह रहे हैं। जी सर, आपने जी सर, ये बता देंगे कि ये स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी से थे और किस डिपार्टमेंट से? जी जी बिल्कुल, जी ये UET टेक्सला के स्टूडेंट है, दैट इज ट्रू। या सर, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के थे। जी बिल्कुल। एंड ही वाज वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स, और इन्हें 3 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर हुए थे। तो अगर वो कर सकते हैं तो फिर आप में से कोई भी कर सकता है। जी सर, कंटिन्यू करें। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर फॉर रिमाइंडिंग, दैट्स राइट। मतलब अगर GPA 3.3 है, तो वो मैं आपको कह रहा हूँ ना, इट्स अ नॉइस, राइट? 3.3 GPA इज अ नॉइस। मतलब 3.9 GPA इज समथिंग जो जिस पे आप ना थोड़ा सा ठिठकते हैं कि यार ओ लुक एट दिस स्टूडेंट, राइट? मतलब दिस ही इज अ मीडियम लेवल स्टूडेंट, राइट? जो जब आप अप्लाई करेंगे तो सिर्फ GPA पे, इवन ये 3.84 का GPA भी आप देख लेना, व्हाई ही इज नॉट गेटिंग पिक्ड। एक तो इनके पास चीजें, मतलब हिज ईमेल इज नॉट वेल ड्राफ्टेड, बट मोर इम्पोर्टेंटली इज के मतलब 3.84 पे भी पीपल आर नॉट पिकिंग, राइट? दे जस्ट GPA विल नॉट हेल्प यू टू गेट पास दैट लाइन। ठीक है, इसी तरह देखें हम लोग SOPs रिव्यू करते हैं, राइट? अगर आप ये देखें तो
अभी एक एसओपी लिखी हुई है स्टूडेंट ने, राइट? तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? आप इस पूरी एसओपी में देखें, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंशन कर रहे हैं कि किस प्रोफेसर के साथ आपने किस किस एरिया में चीज करनी। ये छोटी छोटी चीजें हैं विच मैटर्स, विच कैचेस द आईज, जो कि आपको वो जो लाइन है ना वो क्रॉस कर सकते हैं आप नॉइस लेवल से ऊपर आ सकते हैं, राइट? ये वो चीजें हैं जिसके हम ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहूंगा वो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन है, राइट? ये अभी हम अपने स्टूडेंट्स को आई कोड गुरु 2 से 3 हैकाथॉन्स पर मंथ लेके जाता है, ठीक है? और ये जो हैकाथॉन्स है ये वैसे सेलेक्ट नहीं होती, एक डेडिकेटेड टीम है जो कि आई कोड गुरु में जो इनको रिव्यू करती है, फिर देखती है कौन से हैकाथॉन में लेके जाना है, उनको अनाउंस किया जाता है, कोर्सेज रन किए जाते हैं उनके लिए, गाइडेंस के लिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब ये हैकाथॉन्स है आजकल 80 to 90% हैकाथॉन्स में इसमें हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी, इन पर बेस्ड होती है, राइट? तो इसकी फिर हम बाकायदा ट्रेनिंग्स रन होती हैं ताकि अब ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, राइट? अगर आप ओवरऑल कोडिंग में डोमेन में जाकर देखें, लेकिन आपको एक एक्सपोजर मिलना होता है कि यार ये हमने इस हैकाथॉन में अप्लाई कैसे करना है, इसमें हमने इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ कैसे करना है, हमें फ्री लाइसेंस कैसे मिलना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के लेके जाया जाता है कि ये चीज़ें आपने इस तरह करनी है। और ये इस तरह फिर हमारे स्टूडेंट्स को जो है इन हैकाथॉन्स में ना सिर्फ वो जाते हैं, उनको अच्छी टीम्स मिलती हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म वेल, ठीक है? हमारे जिस तरह पहले जुबैर जफर के बता रहे थे कि 400+ अवार्ड्स हैं, राइट? इन हैकाथॉन्स में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, और मतलब जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं नस से था, और जब मैं यूएस भी आ गया तो मुझे ही नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान से कोई स्टूडेंट यहाँ फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आ सकता है, ठीक है? इसी तरह आई वॉज सरप्राइज जब हमारे स्टूडेंट्स ने प्राइजेस विन करने शुरू किए, तो बल्कि मैं डॉक्टर जफर से पहले कहता था, मैंने कहा कि यार मेरा ख्याल है इनको अच्छी टीम मिल गई, देवर लकी, दे मतलब इफ देयर इज अ गुड टीम, एक पर्सन है जिसके पास बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, वो यूएस या जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया से है, सो यू गॉट लकी कि आपको उस टीम में चले गए, एंड यू गॉट। एंड देन आई वॉज सरप्राइज कि हमारे अपने स्टूडेंट्स ने एक टीम बनाई और वो टीम विन कर गई। मतलब दैट्स हाउ योर स्टूडेंट्स सरप्राइज यू, राइट? और ये स्टूडेंट्स कौन है? मतलब दे आर, जिसको हम मिड टीयर या लो टीयर यूनिवर्सिटी से कहते हैं ना, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, मतलब नॉट जो प्रिविलेज स्टूडेंट्स नहीं है, यूईटी टेक्सला, यूईटी लाहौर, नस्ट, फास्ट, लम्स, ये तो प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, राइट? ये लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से हैं, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से हैं, वो स्टूडेंट्स इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज अमेजिंग, राइट? फिर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हम इनको इनकरेज करते हैं कि लिंक्डइन पोस्ट करें, और हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जाकर देखें, वो जब हैकाथॉन में जाते हैं वो पोस्ट करते हैं, किस तरह वो पोस्ट करते हैं, किस तरह वो लोगों को रिकग्नाइज करते हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, किस तरह वो उनको रेफर करते हैं, किस तरह वो उनसे रिकमेंडेशंस लेते हैं। इट्स अ होल प्रोसेस, जिस तरह जिसके थ्रू वो जाकर इन इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कंपटीशन में ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, अपने लिंक्स बनाते हैं, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल इंप्रूव करते हैं। सो और ये हैकाथॉन्स कितनी हो, जिस तरह आप आज रात को 10 बजे एक हैकाथॉन शुरू हो रही है, 24 आवर्स हैकाथॉन, जस्ट 24 आवर्स। उससे पहले आप एक वेबिनार हमने दिया, थोड़ा सा स्टूडेंट्स ट्रेन किए, एंड देन दे आर गोइंग फॉर 24 आवर्स हैकाथॉन। कुछ 3 दिन की होती हैं, कुछ 7 दिन की होती हैं। अगर आप जाकर सर्च करें, कुछ हैकाथॉन्स मंथ्स की होती हैं, लेकिन वो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 महीने किसी प्रोजेक्ट पे इस हैकाथॉन में काम करते रहे, ठीक है? तो हम जनरली 7 to 10 डेज से ज्यादा हैकाथॉन्स में स्टूडेंट्स को नहीं लेके जाते, और उसमें भी आप एवरी डे यू हैव टू स्पेंड 2-3 आवर्स, उससे भी कम आप स्पेंड कर सकते हैं ना। इट डिपेंड्स हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम, राइट? और मुझसे कई दफा स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट करना है, मुझे टॉपिक बताएं, ठीक है? इट्स मतलब ये जनरली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, हम भी ये क्वेश्चन करते थे, और हम प्रोजेक्ट एक लेके जाते थे, प्रोफेसर या वो लोग कह देते थे नहीं दिस इज नॉट गुड, फाइंड अनदर वन, राइट? इन हैकाथॉन्स में आपको आइडियाज मिलते हैं, ना सिर्फ आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स पे एक्सपोज होते हैं, क्योंकि आखिर में सब अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं। लुक एट द इम्पैक्ट, आप इतने प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, आप उसमें से कोई प्रोजेक्ट अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, अपने किसी अच्छे सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए पिक कर सकते हैं। सो दैट्स द एक्सपोजर दैट दीज इवेंट्स गिव, राइट? जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, क्लासेस हम आइलेट्स और जीआरई की देते हैं, राइट? इट्स दे आर फ्री कोर्सेज। तो हमारे स्टूडेंट्स, अगर आप आइलेट्स में देखें, 7.5 या हायर बैंड ले रहे हैं, राइट? दे आर नॉट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन देयर ट्रेनिंग, राइट? फ्री क्लासेस हैं जिसमें स्टूडेंट्स
ज्यादातर डिस्कशन करते हैं, इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म, राइट। हर दिन हमारी मल्टीपल क्लासेस होती है, बहरहाल इस वक्त 2 सेशंस हैं आइलेट्स के। इट्स 1 hour ईच, 5 days a week, फ्री सेशन। आप आए, जूम लिंक ज्वाइन करें, सीखें, एंड देन पीपल गो एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड बैंड्स, राइट। सॉरी। और अभी स्टूडेंट्स हमारे यूएस आते हैं, मतलब एवरी ईयर 8 to 10 स्टूडेंट्स हैं जो यूएस आते हैं, बट मैं आपको, हमारा कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आया जिसके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप ना हो। ऑल आर स्टूडेंट्स कम हियर ऑन स्कॉलरशिप्स। उनको सिर्फ एडमिशन नहीं मिलता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी पड़ती, बिकॉज दे हैव अ फंडिंग, राइट। दे डोंट हैव टू शो एनी बैंक स्टेटमेंट। उनका वीजा प्रोसेस आसान हो जाता है, बिकॉज जो है एम्बेसीज भी ये चीज देखती हैं कि अगर ये स्टूडेंट इतना अच्छा है, मतलब एडमिशन तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है ना, देन दे रिव्यू। वो आपका प्रोफाइल रिव्यू करते हैं, आपको आपके सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जाती है। दीज स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू दिस, जो 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 इन ये हमारे स्टूडेंट्स को भी जाना पड़ता है, बट देन दे हैव एन एडेड एडवांटेज, राइट। एम्बेसी भी देखती है, वीजा ऑफिसर भी देखता है कि अगर एक प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी इस स्टूडेंट को इतने पैसे दे रही है, बुला रही है, तो देयर हैज टू बी अ रीजन दैट, राइट। इट फैसिलिटेट्स दैट प्रोसेस। अभी जिस तरह ये मोहम्मद तलहा है, ये अभी यहाँ पर ही केम लास्ट ईयर फॉल में ही स्टार्टेड। अभी ये देखें, ही इज फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मैंने तो इस यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं सुना होगा, मतलब जब मैं पाकिस्तान में था, अब शायद आप लोगों ने सुना हो, मुझे तो इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता, राइट। ही इज डूइंग पीएचडी एट कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर मैम इकबाल खातून है, ही इज फ्रॉम कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग नवाब। एसवी यूनिवर्सिटी का भी मैंने नाम नहीं सुना हुआ। शी इज डूइंग पीएचडी एट वाइमिंग, राइट। मैम सुमेरा रानी है, शी इज अ सेकेंड ईयर पीएचडी स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, राइट। तो ये और भी बहुत सारे नाम है, मतलब दीज आर द पीपल हु हैड दैट इनिशिएटिव, जिनको हमने थोड़ा सा गाइड किया, उनको उनका प्रोफाइल इंप्रूव किया, उनको गाइड किया कि किस तरह आप आगे आ सकते हैं। दी स्टूडेंट्स आर हेयर, राइट। इस साल हमारे बहुत से स्टूडेंट्स, ये मैं हमारे फर्स्ट स्टूडेंट है ना मोहम्मद तलहा, जो यहाँ मैंने लिखा, इनका मैं एक रिज्यूमे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे इनका रिज्यूमे है, जो जब इन्होंने आई कोड गुरु ज्वाइन नहीं किया था, एंड ही वॉज कंसिस्टेंटली अप्लाइंग चाइनीज स्कॉलरशिप्स के लिए, यूरोपियन स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन उनको नहीं मिल रही थी। ही वॉज डूइंग अ जॉब ऑल्सो। और ये राइट साइड पे इनका है, जब इन्होंने आई कोड गुरु ज्वाइन किया, इन्होंने मुख्तलिफ इवेंट्स में वो गए, एंड हाउ हिज ओवरऑल प्रोफाइल इम्प्रूव, और इस पे इनको पीएचडी मिली, फुली फंडेड, और नाउ ही इज हियर इन डूइंग हिज पीएचडी। अगर मैं लेफ्ट और राइट साइड पे देखूँ ना, तो मुझे वैसे लेफ्ट वाली सीवी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि कम से कम इसका फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा है, फोटो शोटो लगी हुई है, तो मैं तो कहूँगा कि सीवी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आप राइट साइड पे देखें, अब आप देखें कि इनकी, अगर आप लेफ्ट और राइट पे कंपेयर करें, मतलब इट्स अ वेरी, लेफ्ट इज वेरी स्टैंडर्ड सीवी, पर्सनल स्टेटमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, मैंने ये किया हुआ है, ठीक है, जो हम में से ज़्यादातर का यही होगा ना। हम थोड़ा सा एजुकेशन एक्सपीरियंस डालेंगे, थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे। बट आप राइट साइड पे आकर देखें, मतलब कहाँ है एडवेंट ऑफ कोड 2022 टॉप 6, राइट। अब ये देखें, ये वो चीजें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं, राइट। गूगल कोड जैम में भी गए 2022, 71 पॉइंट्स, थर्ड पोजीशन इन इलेक्ट्रिकल कंपटीशन। फिर ये इनकी हैकाथॉन्स देखें, राइट। ही वेंट टू फार्मूला एआई हैकाथॉन। अब ये वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है जो जो पिक हो रहा है। अब इस रिज्यूमे की बेस पे ही गेट्स पिक्ड, बट के इस रिज्यूमे की बेस पे ही वाज नॉट गेटिंग पिक्ड। और ये जो लेफ्ट साइड का रिज्यूमे है, हम में से ज्यादातर का यही रिज्यूमे होता है। हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा मतलब जो मैंने आपको बताया, आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्रेडेंशियल्स होंगे, एंड दैट्स ऑल, राइट। एंड दिस इज द राइट साइड रिज्यूमे दैट गेट्स पिक्ड, ठीक है। फिर ये इन्होंने आई कोड गुरु को मेंशन किया हुआ, इन्होंने बताया हुआ है कि मैंने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, क्या क्या कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं वेयर यू कैन गो एंड सी हाउ ही इज टीचिंग, दो ही इज टीचिंग इन उर्दू, लेकिन क्योंकि जिसका मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर प्रोफेसर इस चीज को नहीं देखते कि ये तो उर्दू में पढ़ा रहा था, उसके लिए तो उन्होंने आइलेट्स दिया हुआ है ना, कि इसको इंग्लिश आती है, तभी तो आइलेट्स का इसका स्कोर है। बट दे सी के ही हैज अ पैशन टू टीच, और ये अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, एंड हाउ ही टीचेस। तो जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था, यहाँ पर टीए और आरएशिप की पोजीशन है ना, तो दिस फैसिलिटेट्स द प्रोफेसर, की इसने तो पहले पढ़ाया हुआ है, इसको तो पढ़ाना आता है, ठीक है। ये तो कोलैबोरेट कर सकता है, ये इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जा रहा है, सो दैट इज वेयर इट मैटर्स।
सॉरी, अभी ये कुछ हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो भी 2024 के एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखें, ये अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्लाईज आ रहे हैं, राइट, फॉर दिस ईयर, फॉर फॉल 2024 एडमिशन्स के लिए। जस्ट 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लो। तो अगर आप ये देखें अभी इनको किस तरह के रिप्लाईज आ रहे हैं, राइट। अभी जो है ना एडमिशन डेडलाइंस वो जनरली फरवरी में क्लोज होती है, राइट। आप जब फॉल के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज जनवरी में, कुछ फरवरी में, बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो मार्च में अपनी डेडलाइंस क्लोज करती हैं। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको ऑलरेडी प्रोफेसर्स पिक कर रहे हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि प्रोफेसर्स भी अच्छे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। दे डोंट वांट टू वेट, अगर उनको ये अच्छा स्टूडेंट मिले ना, दे डोंट वांट टू वेट कि ये स्टूडेंट कोई और प्रोफेसर पिक कर ले, राइट। तो अब ये देखें राइट साइड पे कि प्रोफेसर कह रहा है कि आई डिसाइडेड टू ऑफर यू द रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन, राइट। इसी तरह ये आप आगे जाके देखें, ये 3 हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशन्स हो गए, राइट। ये कैंडिडेट 7th सेमेस्टर में 3.1 GPA है, राइट। एक विलेज से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट है एंड ही हैज गॉट एक्सेप्टेड, राइट। इसी तरह ये देखें 3.2 क्यूमुलेटिव GPA, ठीक है, ये प्रोफेसर का रिप्लाई है, ठीक है। ये स्टूडेंट साहिवाल से हैं, इनको फुली ग्रेजुएट एडमिशन मिल गई, ये प्रोफेसर का रिप्लाई है। तो आप ये देखिए, दिस इज हाउ, अगर आपका GPA, मतलब GPA इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड गेट अ वेरी गुड GPA, इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। लेकिन इन स्टूडेंट्स को जो हम जिस तरह हाई कोर्ट गुरु गाइड कर रहा है, तो अगर इनका GPA बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं है, स्टिल दे आर गेटिंग पिक्ड, स्टिल दे आर getting professor support, still they are getting fully funded PhD admissions, मास्टर्स एडमिशन्स। तो ये वो चीज़ है जिसमें हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, ज्वाइन करें हमें, ठीक है, आकर देखें। it's a free platform, right? It's an online platform. You don't have to go somewhere, you don't have to spend something. Come and try and see whether it is for you, right? जिस तरह हम कहते हैं ना कि जिंदगी आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, ये हमारा काम है कि हम उन अपॉर्चुनिटी से कितना फायदा उठा सकते हैं। सो आई वुड कंसिडर दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट। जो जब मैंने की PhD, जब मैंने अपना बैचलर्स किया और मैं मास्टर्स और PhD के लिए ढूंढ रहा था, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता नहीं था, राइट। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं यूरोप चला गया, राइट। फिर और अपॉर्चुनिटीज मिलती गई एंड देन लेकिन ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह ये मोहम्मद तलहा है, राइट, आई एम श्योर ही वुड soon be in a, मतलब जब ये PhD कर लेंगे, he would be at Google or Apple, right? Such a bright student, right? तो ये आप भी हो सकते हैं, you will be here इंशाल्लाह this year और next year। तो जरूर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं और हमें ज्वाइन करें। तो दैट्स ऑल। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछिए। जी, अगर आप अभी फोरम ओपन है, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं हाई कोर्ट गुरु के बारे में, इस बारे में कि आप लोगों को कैसे आप बाहर आ सकते हैं, कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर पूछिए। डॉक्टर जफर भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट के लिए बात कर लूं। जी जी सर, क्यों नहीं, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू गाइस आर लकी कि आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त सेशन अटेंड किया डॉक्टर रिजवान का, इन्होंने सारी चीज़ें कवर की हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि getting a fully funded scholarship in the United States or any other countries, it is just one step and the first step in the process. अगर आप एक्चुअली टेक्निकली अच्छे नहीं हैं तो आप यहाँ पे आके मास्टर में फंस जाएंगे, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ मास्टर कंपेटिटिव है, पूरी दुनिया से कंपटीशन होता है। तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे आ गए और आप उतने टेक्निकली बेहतर नहीं थे, तो नॉर्मली इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू सर्वाइव।
यानी कि तुक्का लगे तो आप सर्वाइव कर देंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मास्टर हो जाता है तो उसके बाद भी जो तकरीबन मे बी 10% ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें अच्छी कंपनी में जॉब मिलती है, बाकी सब तो बहुत लो सैलरी पे जॉब कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है मास्टर हो भी जाए तो उसके बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्लियर कर सकें, और उसके बाद फिर आप इन कंपनीज में भी आगे ग्रो कर सकें। तो आई कोड गुरु जो है आपको इन सारे स्टेप्स के लिए राइट टाइम पे प्रिपेयर करता है। यानी कि हम बेसिकली आपको इंटरव्यू में इस काबिल बनाते हैं कि आप गूगल, एप्पल का इंटरव्यू क्लियर कर सकें जब आप मास्टर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। उसके अलावा जब आप अमेरिका पहुंचे तो आप मास्टर में अच्छा स्कोर ले सकें। तो हमारे अभी तक जितने स्टूडेंट्स आए पिछले 3 साल में, उन सब ने अपने अपनी क्लासेस में टॉप की है, हालांकि उनका कंपटीशन दुनिया के बेस्ट टैलेंट से था यहाँ पे, और इन सब स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान में कभी टॉप नहीं किया था। तो दैट इज हाउ वी प्रिपेयर अवर स्टूडेंट्स। जी, नाउ वी वुड लाइक टू इनवाइट द क्वेश्चंस। हैंड रेज करें और पूछते जाएं। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, हेलो। एक ही गो में क्वेश्चन कंप्लीट करें। ओके सर, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मैं मेडिसिन प्रैक्टिस करती हूँ। सो आई वांटेड टू आस्क कि अगर करियर स्विच करना चाहें तो उसके लिए कहाँ से स्टार्ट देना चाहिए? कैरियर आपने किस चीज में स्विच करना है? प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस एंड एआई। आई वांट टू स्टेप इनटू इट, सो मुझे काइंडली गाइड करें कि आपके इसमें लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेना ठीक है, चाहिए? देखें इस वक्त पूरी दुनिया डाटा साइंस कर रही है और एआई कर रही है। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में इस वक्त 10 लाख स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, तो उनमें से एटलीस्ट 9.99 लाख जो है वो एआई कर रहे हैं। तो आपकी डोमेन बनेगी यूज ऑफ एआई इन मेडिकल साइंसेस। ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपने मेडिकल की साइंस के अलावा कंपटीशन में नहीं आना, वरना जो लोग सारा दिन, जो लोग राइट आफ्टर हाई स्कूल दे आर इनटू एआई एंड प्रोग्रामिंग, उनसे अगर आप उनकी डोमेन में compete करना चाहेंगे तो लाइफ विल बी टफ, आपका एडेड एडवांटेज नहीं होगा। लेकिन कितने डॉक्टर हैं जिन्हें एआई आती है? वो किसी को भी नहीं आती। तो इसलिए अगर आपको आ जाएगी तो यू विल बी द वन एंड द ओनली। तो उसके लिए आप पहले पाइथन सीखें, जब आपको कोडिंग आ जाए तो उसके बाद आप एआई सीख लें। और आई कोड गुरु ये सारी चीजें ट्रेन करता है। अगर आप आई कोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो यू विल बी वेल टेकन केयर ऑफ। आपको आपकी स्पीड, कैपेबिलिटीज के लिहाज से पढ़ाया जाएगा। राइट सर, मैंने पाइथन सीखनी शुरू कर दी ऑलरेडी एंड आई एम वर्किंग ऑन माय स्किल्स। पाइथन के बाद से व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Next step is DSA, data structure and algorithms. After that is Okay. data analysis, and after that is AI or ML. All right. Got it. And sir, meanwhile, we have to participate in the hackathons as well. Of course. Hackathon के अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, if somebody is a first semester university students, he should go to hackathons. हमारे कुछ एफएससी के स्टूडेंट्स हैं जो हैकाथॉन में जाते हैं। तो हैकाथॉन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और हैकाथॉन में जाने के लिए ना तो कुछ आना चाहिए और ना टाइम की जरूरत। अगर आपके पास कुछ घंटे हैं तो एज अ पार्टिसिपेंट चले जाएं, अगर सिर्फ 1-2 घंटे तो एज अ मेंटर चले जाएं, अगर वो भी नहीं है फिर एज अ जज चले जाएं। बट यू शुड बी गोइंग टू हैकाथॉन, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली स्केड्यूल। जी बिल्कुल। इसमें अगर आप मैम, अगर आप ये कोड स्किल्स अगर इतनी अच्छी, सॉरी, शायद आपकी आवाज कट रही है। बाकी लोगों की आवाज ठीक आ रही है? सॉरी सर, यू आर नॉट ऑडिबल। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप अच्छा, बोले, अब आपकी आवाज आई। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप इसमें ना आप ये आई कोड गुरु का फोरम ज्वाइन करें। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आज एक हैकाथॉन शुरू हो रही है। अभी उसके लिए तो इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, लेकिन हम हर महीने 1 या 2 हैकाथॉन्स अनाउंस करते हैं। ठीक है, अभी एक हैकाथॉन है जो आई कोड गुरु खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आप उन हैकाथॉन्स में, अब ये आपको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, राइट? मतलब हैकाथॉन्स में आप खुद भी जा सकती हैं, ढूंढें और कोई हैकाथॉन मिल जाए उसमें चली जाए। लेकिन यहाँ पर ये है कि इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड, कि वो हैकाथॉन जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना, रिव्यू होती है, उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, फिर उसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं टीम सिलेक्शन में। जब आपको कोई
काम, इफ़ यू आर स्टक ऑन समथिंग, आपसे नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट्स उस चीज़ को शेयर करते हैं। तो हमारा जिस तरह इनिशियली ज़ुबैर ज़फ़र ने कहा ना, इट्स अ म्यूचुअली लर्निंग प्लेटफॉर्म, राइट, जिसमें म्यूचुअल लर्निंग ज़्यादा है। आप अगर खुद एक हैकाथॉन में जाएं, राइट, अभी जैसा मैं अभी एक हैकाथॉन में जाना चाहूँ, मुझे तो देर आर मेनी स्टेप्स जिसमें मैं फंसता जाऊंगा। अच्छा, अप्लाई कैसे करूँ, रजिस्टर कैसे करूँ, अच्छा ये कह रहे हैं ये टेक्नोलॉजी यूज करूँ, मुझे इसका लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, क्या मैंने ये लाइसेंस खरीदना है, अच्छा नहीं वो लिंक में, मतलब आई कैन डू बट इट टेक्स मोर टाइम। वो टाइम और वो गाइडेंस आपको ये फोरम प्रोवाइड करता है, जिसमें ये चीजें बताई जाती हैं कि किस तरह आपने रजिस्टर करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किस तरह यूज करनी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका लाइसेंस कहाँ से मिलना है। मतलब कि आपने उसका लाइसेंस परचेज करना है, क्योंकि मतलब अब ज्यादातर चीजें तो ये सारी पेड है, राइट। चैट जीपीटी इज पेड, जो बाकी फोरम्स हैं उसका अगर आपने उसमें डेवलपमेंट करनी है तो आप किस तरह कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट दिस फोरम कैन हेल्प यू। तो आप ज्वाइन करें, हमारे इंटरनेशनल हैकाथॉन्स का पूरा एक चैनल है, जिसमें हैकाथॉन्स अनाउंस होती हैं, जिसमें लीड मॉडरेटर्स होते हैं जो उसको लीड कर रहे होते हैं, जिसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं। तो दैट वुड हेल्प यू ऑल। Right, sir. Thank you so much. जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मैंने आईकोड ग्रुप में जो उनकी वेबसाइट है मैंने वो ज्वाइन की है। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ 4th सेमेस्टर में। मेरा क्वेश्चन ये था मतलब कि मैं आईकोड गुरु को कैसे फॉलो कर सकता हूँ। सुबह को मेरे क्लासेस होती हैं और दोपहर को मतलब जो स्टडी वगैरह होती है यूनिवर्सिटी की, और जो वहाँ पर काम वगैरह होता है वो शाम को करना होता है। फिर कोई मखसूस आप मतलब चैनल से बता दें, जैसे डीएस हो गया या हैकाथॉन का चैनल हो गया, बट मतलब हम स्पेशली कौन सा फॉलो करें। जी मैं ये क्वेश्चन ले सकता हूँ। आई कोड गुरु पे दो चीजें समझने की है। एक तो ये है कि आई कोड गुरु पे हम ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाते जो कि आपको कैरियर में सक्सेसफुल होने के लिए ऑप्शनल है। यस सर। दूसरी चीज कि हम आई कोड गुरु पे हर चीज का टाइम स्विच करते रहते हैं। तो जिससे आजकल पाइथन हम रात 11 से 12 बजे तक पढ़ा रहे हैं। ये पहले 6 से 7 बजे तक भी पढ़ाई जा रही थी, 3 से 4 बजे तक भी पढ़ाई जा रही थी, सुबह के टाइम में पढ़ाई जा रही थी। तो हम जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप जिस भी घंटे में आप अवेलेबल हैं, अगर आप उस घंटे में जो कोर्स हो रहा है वो ले लें तो दैट इज यस एनफ। और कोर्स के लिए कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जाकर बैठे क्लास में जो कुछ हो रहा है कर लो। ठीक है सर। तो ठीक कुछ है। अर्से के बाद आपको खुद फील होगा कि यू आर गेटिंग अ बेटर प्रोफेशनल। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, पूछूं? जी पूछ। जी सर, आपने जिस तरह पहले एक बार बताया था कि जिस तरह FYP जो होते हैं कि आप लोग हैकाथॉन में जाएं और उसी प्रोजेक्ट को FYP में बना लें, लेकिन सर जो हमारी यूनिवर्सिटी है NED यूनिवर्सिटी, उसमें ये होता है कि टीचर जो होते हैं वो एक पर्सनलाइज प्रोजेक्ट आपको टीचर के अंडर काम करना होता है। तो वो टीचर अपने कोई प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और डोमेन बताते हैं कि हम इन डोमेन्स के अंडर ये करवाएंगे FYP का प्रोजेक्ट। तो सर हमने जो मिस मिली हैं वो हमें जो FYP की जो डोमेन है वो उनकी ईगो 4D है। तो वो है, तो आप उसके बारे में अगर थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि ये मतलब रिसर्च अभी इसके ऊपर चल रही है, तो उसमें हम लोग अपना FYP किस तरह बना सकते हैं, कोई अगर आप सर हमारी हेल्प करें। जी बिल्कुल। पहली बात ये समझने की हमें है कि जो दुनिया की बेस्ट कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, amazon, इनमें जाने के लिए आपको अच्छा डाटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, अच्छी रिसर्च बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। राइट। यानी गूगल में अगर आपने नेटवर्क की टीम में जाना है या AI की टीम में जाना है या किसी और टीम में जाना है तो आपका इंटरव्यू सारे का सारा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का होगा। इन डोमेन्स का इंटरव्यू बहुत सरसरी सा होगा। और ये डोमेन्स आपको नहीं भी आती हैं तो गूगल सिखा लेगा, ये बड़ी कंपनी सिखा लेती है। तो पहली बात तो ये कि बीइंग रिसर्च जॉब में जाने से बहुत पहले यू शुड नो यू आर अ 10x इंजीनियर, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी इंजीनियर से 10 गुना बेहतर है। दूसरी चीज, अंडर ग्रेड जो होता है इसका पर्पस होता है आपको इस काबिल करना कि आप चीजें बना सकें।
इम्प्लीमेंट कर सकें। अंडर ग्रेड में रिसर्च के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, तो इसलिए रिसर्च तो आप कर नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है। जो अंडर ग्रेड में पेपर लिखता है तो इसका ये मतलब होता है, इट इज अ हिंट कि उसे रिसर्च पेपर लिखना आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिसर्चर है। और अगर कोई बहुत ज्यादा पेपर लिखता है तो इट इज अ क्लियर आइडिया कि वो हैकिंग कर रहा है। वो कोई और चीज पकड़ता है, उसमें से 2 पैरामीटर चेंज करता है, नया रिजल्ट आता है और वो कहीं भेज देता है। तो आजकल कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज्यादा, तो उसको पब्लिश तो हो ही जाना होता है इफ यू हैव मनी। तो यानी आपका कैरियर गोल, जब आप FYP भी कर रहे हैं तो आपका कैरियर गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए, एंड देन यू सी के वो जो काम आप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो 6 महीने बाद कहीं पे भी आपने नहीं होना, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि आपके लॉन्ग टर्म कैरियर गोल से अलाइन करता हो। लेकिन सर अगर कोई मतलब कैरियर के लिहाज से अगर कोई FYP कर हो रहा ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, मतलब कि वो सारे AISE से रिलेटेड हैं या कोई हर टीचर की अपनी डोमेन है, तो फिर क्या करना चाहिए सर? ट्राई टू फाइंड द बेस्ट फिट, राइट। सर टीचर हमने फॉर द बेस्ट कर हमने सकते हैं। हमने 3-4 मतलब जो बेस्ट थे, हम अपनी मैंने गोल के रिलेटेड देखा है, तो मतलब ये वो रिसर्च और AI से रिलेटेड है। तो आप सर मुझे इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा अगर गाइड कर सकें, क्योंकि ये रिसर्च करवा हाँ, रहे थे। आप स्लैग में आए तो स्लैग में हम इस पे आप बात कर सकते हैं। स्लैग में ठीक है सर, नॉर्मली मैं थैंक 9 PM के सेशन में आता हूँ, तो वहाँ पे हम ठीक इसको सर। डिस्कस कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सर लेकिन जी सर बोलो। मैं थोड़ा सा ये स्लैक चैनल शेयर करूंगा, जिस तरह पहले मैम बता रही थी इंटरनेशनल हैकाथॉन्स का, और अभी आप भी जिक्र कर रहे थे। देखिए, ये हमारा स्लैक चैनल है, ये मुख्तलिफ चैनल्स हैं उसमें। जिस तरह ये एक इंटरनेशनल हैकाथॉन्स का चैनल है जो मैं पहले बता रहा था। अभी देखिए, ये एक हैकाथॉन अनाउंस हुई है, राइट। इसमें फिर उसमें अब एक स्टूडेंट बता रहा है मुझे टीम नहीं मिल रही, फिर लोग उसको गाइड कर रहे हैं कि भाई आपने टीम किस तरह ढूंढनी होती है, राइट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिलती हैं। फिर यहाँ पर आप देखें ना, ऑल दोज हु आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी फॉर रजिस्टर, फिर उन्होंने ये क्या करना है। तो इट्स अ टोटल स्ट्रक्चर जो लेकर चला चला जाता है, राइट। आप इसमें मुख्तलिफ मैसेज दें। फिर इसमें एक अभी वेबिनार कंडक्ट हुआ था, जिसमें इसमें ये मोहम्मद मुबश्शिर हैं हु इज़ लीडिंग दिस, राइट, जिन्होंने फिर बताया कि इस हैकाथॉन में आपने रजिस्टर कैसे करना है, टीम कैसे ढूंढनी है, परफॉर्म कैसे करना है। तो ये वो मुख्तलिफ चैनल्स हैं यहाँ पर। जिस तरह भी डॉक्टर जफ़र कह रहे थे कि वो 9 PM वाले सेशन में जाते हैं। तो आप इसमें जो आपका FYP का क्वेश्चन है, राइट, यहाँ पर ये ब्रिंग योर क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पर ये पोस्ट कर सकते हैं, राइट। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पर अपना बता सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन है आपका, और उसको आपको क्या गाइडेंस चाहिए, राइट। बाकी जो FYP प्रोजेक्ट होते हैं ना, देखिए, इसमें अगर आप मेरे से पूछे ना कि कौन सा बहुत बेहतर प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको एक डिस्क्रीट आंसर नहीं दे सकता, राइट। अगर आपको कोई प्रोफेसर आपके पास कोई प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, राइट, और वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आई विल डू इट। मतलब देखिए, इट्स गुड टू सेलेक्ट, इट्स आइडियल टू गेट वेरी बेस्ट प्रोजेक्ट, लाइक, लेकिन वेरी बेस्ट प्रोजेक्ट हम कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं। इट्स नॉट ईजी टू मैं कहूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कोई प्रोफेसर प्रोजेक्ट दे रहे हैं, राइट, और वो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उससे आपका एक्सपोजर बढ़ सकता है, ठीक है। कल को उस रिसर्च प्रोजेक्ट की कोई पब्लिकेशंस होंगी, कोई आगे जाएगा, उसमें आपका नाम आएगा। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि मुझे प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट कर दे दिया तो वो अच्छा नहीं है, मुझे जो हैकाथॉन से मिल जाएगा वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा। इस तरह नहीं है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आप जब आप हमारे सेशंस में आएंगे, क्वेश्चंस करेक्शंस करेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर गाइडेंस मिल सकती है। तो हैविंग सेड दैट, मैं आपको, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा था ना, लोग बैचलर्स में सिर्फ आपकी दो चीज़ें देखते हैं, आपका GPA और आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको अच्छा करना चाहिए और उस पर मेहनत करनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसमें आप महीने नहीं लगा सकते। इफ यू गेट अ गुड प्रोफेसर जो कि मतलब यू वुड ऑल्सो बी एबल टू वैल्यूएट, राइट, कि उन्होंने ऑलरेडी उनकी कोई पब्लिकेशंस हैं, वो ऑलरेडी रिसर्च में कितने एक्टिव हैं, क्या उनके इंटरनेशनल कोलेबोरेटर्स हैं। जिस तरह मैं वो नर्स स्टूडेंट की CV दिखा रहा था, जिसकी 4 पब्लिकेशंस हैं, एक जनरल पब्लिकेशन है। इट्स नॉट दैट उसने खुद वो पब्लिकेशंस लिख दी, ठीक है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, बट समहाउ ही लैंडेड इन अ गुड रिसर्च ग्रुप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की वजह से। तो हैकाथॉन्स में भी यही होता है कि यू कुड फाइंड अ गुड कोलैबोरेटर्स, यू कैन फाइंड अ गुड प्रोजेक्ट जिस पर आप अच्छा काम कर सकते हैं।
तो सर एक ये था क्वेश्चन कि मतलब आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है ईगो 4D के बारे में? अब ये देखिए ये थोड़े से मुझे आइडिया नहीं है, बट दीज आर पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ये अगर आप हमारे फोरम पे आए, वहां पर और बहुत लोग हैं जिनको इसका आइडिया होगा, राइट? जब आप वहां पर क्वेश्चन ठीक है सर, करेंगे, देन पीपल वुड बी एबल टू गाइड यू। थैंक यू सर, जज़ाक। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए प्लीज। जी मैम, आपका हैंड रेज है। अजहर खान अस्सलाम वालेकुम सर। जी, पूछें। सर ये पूछा था कि जैसे मेरी अंडर ग्रेड की डिग्री कंप्लीट होती है तो फिर फैंग में अप्लाई करूं और वहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट के चांसेस क्या होंगे? जिस तरीके से आजकल कराची की एक शफीका, वो सॉरी, पाकिस्तान की एक शफीका इकबाल हैं, तो उनके जैसे इंटरव्यूज वगैरह आते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट अपने अंडर ग्रेड के बाद उन्होंने अप्लाई किया है इनटू गूगल एंड शी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए कितना चांस है टू गेट एक्सेप्टेड इनटू फैंग कंपनीज? अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आपके अगर आप देखें, फैंग के लिए अप्लाई करने से बहुत पहले, फैंग इज जस्ट लाइक ओलंपिक्स। अप्लाई करना लास्ट स्टेप है, उससे पहले लोग तैयारी सालों करते हैं। तो अगर आप फैंग की प्रॉपरली तैयारी करते हैं तो आपका फैंग में जाने का चांस मोर देन 90% है। और जो शफीका इकबाल है वो फैंग के गूगल के पोलैंड ऑफिस गई हैं, और इन कंपनीज के जो मेजॉरिटी, आई थिंक मोर देन 90% एम्प्लॉयज हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं। तो बेसिकली जो हायरिंग मेन हो रही होती है, जो रिक्रूटर्स हैं, जिस तरह अमेजोन हर साल 5 लाख लोग हायर करता है, तो अमेजोन के रिक्रूटर्स अफ्रीका भी जाते हैं, श्रीलंका भी जाते हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं। तो अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाती हैं अपनी प्रिपरेशन की, तो देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपने अप्लाई करना। फिर तो मैं भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, डॉक्टर रिजवान भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं। वी हैव सो मेनी पीपल ओवर हियर, वी नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट इंटरव्यू कर लेगा। तो जो चीज़ आपने अपने आप से पूछनी है कि कैन आई क्लियर फैंग इंटरव्यू, तो उसके लिए हम स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट 3 इयर्स में मेक श्योर करें कि यू आर रेडी फॉर फैंग इंटरव्यू, और फिर एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर आईएलटीएस और जीआरई करें और यूएसए के लिए अप्लाई कर दें, ताकि जो ही आपकी डिग्री खत्म हो तो आप 2 महीने बाद अपना मास्टर यहाँ खत शुरू कर रहे हैं। दैट इज द वे हो। 90% जो लोग अमेरिका आते हैं वो MS PhD के स्कॉलरशिप्स पे आते हैं और फिर फैंग में जाते हैं। अमेरिका में घुसने का सबसे आसान तरीका ये है। अदरवाइज अगर आप किसी इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन में टॉप 100 में आए तो फिर आपको गूगल कंसिडर कर सकता है हायरिंग के लिए। फिर आपका हायरिंग में कि आपका इंटरव्यू लेने का फैसला कर सकता है। तो सर जो जैसे इतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जैसे बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ब्लाइंड 75 हो गया या इस तरीके से, तो जैसे समझ में नहीं आ रहा था कि वेयर टू स्टार्ट, तो आप थोड़ा अच्छा, ये मैं आपको बता सकते एक हैं कि आंसर जैसे देता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे अपनी जर्नी अच्छा, स्टार्ट करें? जी 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 जी। तो शफीका इकबाल के कितने साल पहले गई थी गूगल में? कोई साथी गैस करेगा? जस्ट जनरल आंसर दे दें। 2 या 3 साल हो गए, 3 साल। 2 या 3 साल पहले। उसके बाद कितने स्टूडेंट गए हैं गूगल में उनकी गाइडेंस के बाद? उसके बाद तो सर सुना नहीं किसी का, तो इट मीन्स इट इज किसी का सुना नहीं। आउटलायर। इट इज आउटलायर, इट इज एक्सेप्शन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मौजूदा हो गए हैं तो कल। ठीक है। तो आई कोड गुरु के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन कंपनीज में, इन सिलिकॉन वैली, राइट? तो हम बेसिकली स्टूडेंट्स को ग्रूम करते हैं, प्रिपेयर करते हैं पूरे का पूरा फ्रेमवर्क में, जिसमें स्टूडेंट को खुद भी पता होता है कि नाउ ही इज रेडी, नाउ ही इज द वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल। तो यूट्यूब बनने के बाद कितने पाकिस्तानी चले गए हैं गूगल में? कोई भी नहीं गया। इवन हमारे गोल्ड मेडलिस्ट नहीं जाते, कभी नहीं आप सुनेंगे। कोर्सेरा बनने के बाद कितने पाकिस्तानियों ने अच्छी कंपनी में जाना शुरू कर दिया? कोई भी नहीं गया। बिकॉज दीज आर नॉट द थिंग्स, इन चीजों से काम नहीं होता। तो हमारे स्टूडेंट्स सिस्टमेटिकली
इन कंपनीज में जा रहे हैं। तो अगर आपने इन कंपनीज में जाना है, आंखें बंद करके आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए दिन का 1 घंटा, तो यू विल बी रेडी। अदरवाइज मैं आपको जितनी मर्जी ज़बानी गाइडेंस दे दूं, इट विल बी एन एक्सेप्शन कि आप ये कर पाए। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई बंदा ये कहे कि सर मैंने क्रिकेट टीम में जाना है, तो मुझे बता दें कि मैं कौन सा रिसोर्स यूज करूं तो मैं ना क्रिकेट की टीम में सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो ऑब्वियसली वही वीडियो देख के बंदा क्रिकेटर नहीं बनता, या कोई बुक पढ़ने से बंदा क्रिकेटर नहीं बनता। क्रिकेटर के लिए किसी अच्छे कोच के अंडर 4-5 साल वो उसी चीज की प्रैक्टिस करनी होती है जो आपको पहले दिन आ जाती है, कि बैट पकड़ के शॉट मारनी है और उन चीजों में बेहतर होना है। तो दैट इज हाउ पीपल गो इनटू फैंग। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? डोंट फॉलो एक्सेप्शंस, फॉलो द मैकेनिज्म्स। सर जी ओके सही। सर एक आखिरी सवाल ये था कि जैसे यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान के अंदर, आपको तो पता ही है एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है हमारा, कि हम हर वक्त बोलते रहते हैं कि जीपीए जीपीए, तो उसके साथ फिर टाइम बचता ही नहीं है अगर हम यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पे फोकस करें। अगर या तो जीपीए को बचा लें या फिर ये एक्स्ट्रा करिकुलर अपना इन चीज़ों पे ध्यान दे दें, मतलब करियर ओरिएंटेड सोच रखें, तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, किस तरीके से लेके चलना चाहिए? मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि दिन में 1 घंटा दें आई कोड गुरु प्लेटफॉर्म को, बाकी अपनी स्टडी पे फोकस करें। बस स्टडी पे इतना फोकस करेंगे जीपीए 3.5 तक आता हो और साथ उसके गूगल की तैयारी हो। देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछता हूँ, अगर अभी आप जब ज्वाइन पास आउट होंगी तो आपको जॉब मिलेगी 1 लाख रुपए की, लेट्स सपोज, राइट? तो आर यू रेडी टू चेंज योर स्केड्यूल विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क कि आपको 1 करोड़ पर मंथ की जॉब मिल जाए स्टार्टिंग सैलरी? तो जो गूगल की स्टार्टिंग सैलरी है दैट जी इज सर, फिर इक्विवेलेंट तो टू, मिल जाएगा। जी, तो गूगल की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो इतनी होती है। इन यूएसए गूगल पेज इक्वल टू 3 किलोग्राम ऑफ गोल्ड पर ईयर एज अ स्टार्टिंग सैलरी। तो आपको जितनी उसकी डिजायर है उस लिहाज से प्लान कर। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग एक्सक्यूजेस देते हैं और कुछ लोग वो काम कर लेते हैं। और जो लोग काम करते हैं उन्हें रिवार्ड मिलता है, जो एक्सक्यूज देते हैं वो फेलियर होते हैं। जी मैं थोड़ा सा जी सर बोला। सर मैं जी देखिए सर, मेरा बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मेरा जीपीए 4 था, राइट? और क्यूमुलेटिव जीपीए 4 मेंटेन करना आसान नहीं है, मतलब आप सब भी पढ़ते हैं, मतलब इट मींस जी, डॉक्टर रिजवान इज ओनली वन ऑफ द 3 पाकिस्तानीज जिनके नस्ट की पूरी हिस्ट्री में जीपीए 4 आया, तो ही इज वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड पर्सन। जी सर, थैंक यू सर। तो मतलब इट मींस एवरी क्विज, एवरी असाइनमेंट, एवरी एग्जाम यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट? मतलब बट लेकिन अगर आज इफ आई लुक बैक, अगर मेरा जीपीए 3.9 होता और मैं ये आईकोड गुरु की एक्टिविटीज करता, आई वुड हैव बीन बेटर प्लेस्ड। ठीक है, तो मेरा जीपीए 4 से 3.9 होना, मतलब 4 मेंटेन करना इज हार्ड, राइट? क्योंकि आप देन या यू रियली डोंट फाइंड टाइम कि आप इन चीजों पर जाएं। बट 3.9, अब आप उस मतलब अगर मैं आईकोड गुरु पे चला जाऊं ना, तो मेरा जीपीए 2.5 नहीं हो सकता था, बिकॉज दैट्स व्हाट द स्टूडेंट इज, राइट? दैट्स व्हाट यू आर। मतलब आपने पढ़ना है और जीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूँ, अगर वो 3.9 होता और मैं आईकोड गुरु की एक्टिविटीज कर रहा होता, आई वुड हैव बीन बेटर प्लेस्ड। मुझे ज्यादा सीखने का मिलता, मेरा एक्सपोजर ज्यादा होता, राइट? तो उस सिलसिले में यू हैव टू मैनेज द टाइम। ऑफ कोर्स जीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, जीपीए इसमें मेंटेन करें। बिल्कुल, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि हम स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कि वो 10x बेटर हो जाए, तो कम से कम 10 गुना बेहतर प्रोफेशनल बन जाए। तो जो आप जब यहाँ पे आती हैं तो आपका टाइम बचेगा, यू विल बी फास्ट लर्निंग, यू विल परफॉर्म बेटर इवन टू गेट योर जीपीए आल्सो। तो आप जो असाइनमेंट अभी शायद 1 हफ्ते में बनाती हैं, फिर शायद आप आधे घंटे में बना लेंगे। दिस इज हाउ मच इट मेक्स अ डिफरेंस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप इट आंसर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर पूछो। मैंने रिसेंटली आईकोड गुरु ज्वाइन किया, मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैंने आपकी सारी करियर काउंसलिंग टॉक्स देखी। नाउ आई एम अ फुल मतलब फोकस्ड पर्सन सर। मैं लीड कोड भी करूँ और मैं डीएसए भी करूँ साथ साथ। बट सर इन पैरेलल विद दैट आई हैव इंटरेस्ट इन डेटा साइंस।
तो सर आप क्या मुझे रिकमेंड करेंगे कि मैं इन्हीं के साथ साथ डेटा साइंस पे स्टडी करूँ? बिकॉज द रीजंस आर टू कि मैं वही डेटा साइंस मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं कुछ अच्छा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी अपनी जो डोमेन नॉलेज है डेटा साइंस की उसकी बेस्ड पे करूँ। तो क्या सर आप ये रिकमेंड मुझे करेंगे कि मैं डेटा साइंस भी पढूं साथ साथ? सर थैंक यू। पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो अपने आप को बर्न आउट ना करें। अगर आप सुबह उठते हैं और उतने फ्रेश नहीं है जितने पिछली सुबह थे, तो दिस इज इंडिकेशन कि आप ओवरलोड कर रहे हैं अपने आप को। और दूसरी चीज ये है कि आई कोड गुरु पे डाटा साइंस कवर होती है। अगर आप रेगुलर रहेंगे फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हम हर महीने हैकाथॉन में लेकर जाते हैं, वहां पे आप डाटा साइंस और एआई कर रहे होते हैं। तो आपके साल में 12 प्रोजेक्ट हो जाएंगे इंटरनेशनल टीम्स के साथ। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको आती हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। जिस तरह आजकल हमारा 7 PM पे एक डाटा साइंस का कोर्स चल रहा है एआई का, और वो एक सीईओ हैं एआई कंपनी की जो कि पढ़ा रही हैं। तो इट इज पार्ट ऑफ द पैकेज। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन की थी अगस्त में। तो उसके बाद मैं 6 मंथ जॉब भी कर रहा था। तो लाइक मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ, तो अब मैंने डिसीजन लिया है कि मैंने यूएस ही जाना है और फुली कमिटेड हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं लाइक फुल टाइम एक आई कोड गुरु को लूँ और लाइक मजीद कोई जॉब के लिए अप्लाई ना करूँ। तो क्या ये डिसीजन लाइक एक बेहतर डिसीजन है? आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर मैं फुली दिस कमिटेड हूँ कि मैंने इसी साल यूएस जाना है? जी, अभी इस साल का मतलब है फॉल 2025। फॉल 2024 के एडमिशंस स्कॉलरशिप्स हो चुके हैं, और दिस इज द ओनली वे यू कैन गेट इनटू यूएसए इन फॉल 2025 कि अगर आप फुल्ली इसे टाइम दें तो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका डिसीजन मेरे ख्याल में ठीक है। अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं दोबारा 25 साल पीछे चला जाऊं तो मैं यही काम करूंगा। आई विल नॉट डू अ जॉब। सही सर। तो मैं बीएस के बाद उस वक्त तक जॉब नहीं करूंगा जब तक मेरा स्कॉलरशिप नहीं आ जाता, और जब तक मैं गूगल की तैयारी पूरी नहीं कर लेता, अगर वो मैंने पहले नहीं की थी। जी नेक्स्ट। वन थिंग सर मैं ऐड करूंगा, वो जो मोहम्मद अला जिनके मैं आपको रिज्यूमे दिखा रहा था ना, ही हैड अ जॉब, ही क्विट हिज जॉब। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी जब उन्होंने आई कोड गुरु ज्वाइन किया था। एंड दैट्स द डिग्री ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज उन्होंने टाइम लगाया एंड विद इन 4 months ही गॉट द फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो मतलब दैट विच इज अ ग्रेट कमिटमेंट, राइट? आपकी मतलब पाकिस्तान में जॉब इतने आराम से नहीं मिलती। एक जॉब छोड़ के इस डोमेन में आना इज नॉट एन इजी डिसीजन, बट देयर आर पीपल हु टेक दैट डिसीजन। उन्होंने ये डिसीजन लिया एंड विद इन 4 months ही गॉट द फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और अब वो ही इज हियर, ही इज माशाल्लाह डूइंग हिज पीएचडी। जी सर बिल्कुल। सर जब हम लीड कोड में सेशंस में लीड कोड कर रहे होते हैं तो ट्रेनर वो हमें लॉजिक सारी एक्सप्लेन करता है कि ये कैसे हो रहा है। तो सर इससे हमारी लॉजिक बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग होगी? लॉजिक बिल्डिंग तो ऐसे नहीं स्ट्रांग होती कि हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से निकालने की कोशिश करें। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हमें तो स्पून फीड किया जा रहा है, तो हम खुद इस काबिल कैसे हो पाएंगे। तो इसका मैं आंसर ऐसे देता हूँ कि जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो जितना मर्जी अच्छा हो, अगर आपने उसे एनफ डाटा पे ट्रेन नहीं किया तो वो काम नहीं कर सकता, वो तो खाली है। जैसे अगर मशीन आपने कैट डिटेक्ट करनी है, लेकिन कैट के आपने उसे इमेजेस ही 2-3 दिखाए हैं, तो वो क्या कैट डिटेक्ट करेगा? आप उसे जितना मर्जी बार बार चलाएं, जितना मर्जी ओवरलोड करें, वो कैट डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ह्यूमन ब्रेन भी तो एक मशीन लर्निंग का मॉडल ही है ना, न्यूरॉन्स ही होते हैं ना ह्यूमन ब्रेन में। तो जब तक आप एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस मुख्तलिफ स्टाइल से, मुख्तलिफ प्रेजेंटर से नहीं देखेंगे, तो यू शुड नॉट ट्राई दिस एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। आफ्टर वॉचिंग फ्यू हंड्रेड क्वेश्चंस, आपका ब्रेन खुद खुद काम करना शुरू कर देगा, खुद आपके जहन में सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे एफर्टलेसली। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एफर्टलेसली बोलना शुरू किया था, क्योंकि ब्रेन एनफ ट्रेन हो चुका था लोगों की बातें सुन सुन के। जिस तरह आपने चलना शुरू किया था, क्योंकि ब्रेन एनफ ट्रेन हो चुका था। ह्यूमन लर्न्स बाय एग्जांपल्स, ह्यूमन डज नॉट लर्न बाय होमवर्क, ह्यूमन डज नॉट लर्न बाय स्पून फीडिंग। तो इंसान को एक टाइम चाहिए होता है,
दूसरी चीज जो इंसानी ब्रेन की समझने की आप लोगों को जरूरत है कि जिस तरह मशीन लर्निंग मॉडल को आप डाटा किसी भी ऑर्डर में दें वो ट्रेन हो जाता है, तो ह्यूमन ब्रेन को आप डाटा किसी भी ऑर्डर में दें, ह्यूमन ब्रेन बाद में डॉट्स कनेक्ट कर लेता है, शुरू में अब्स्ट्रैक्ट समझ के बाद में डॉट्स कनेक्ट कर लेता है। व्हाट डज इट मीन? इंसानी लाइफ में ह्यूमन ब्रेन की लर्निंग के लिए देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड प्रीरेक्विजिट। ये हमने यूनिवर्सिटी और स्कूल के मैकेनिज्म में आकर बना दिए हैं और हम सोचते रहते हैं पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ने ऐसे बनाया ही नहीं है। ह्यूमन ब्रेन का लर्न आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचें पहले मैं ये काम कर लूं फिर ये करूंगा। इट इज नॉट नीडेड। जो चीज मिल रही है सीखते जाएं। इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि आपके ब्रेन में डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो जाए। होप इट हेल्प्स, माय आंसर हेल्प्स यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसीलिए जब आप शुरू में कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, शुरू में लीड कोड कर रहे हैं, तो फॉर फर्स्ट फ्यू हंड्रेड क्वेश्चंस जस्ट सी द क्वेश्चन, थिंक फॉर 3-4 मिनट्स। अगर 3-4 मिनट में आपके जहन में सोल्यूशन नहीं आ रहा तो अपने आप को बताएं कि मेरा भी ब्रेन ट्रेन नहीं हुआ। आई नीड मोर डाटा, आई नीड मोर एग्जांपल्स, एंड जस्ट गो ऑन द सोल्यूशन एंड अंडरस्टैंड इट एंड मूव अहेड। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन जो मैम से पहले भाई ने क्वेश्चन किया था ना वही है, सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है कि लाइक मैं सीएस ग्रेजुएट हूँ 2022 के अंदर। तो आई वांट टू आस्क कि गैप आपका जो है बैचलर्स के बाद वो मास्टर पे अफेक्ट करता है अगर आप यूएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए? जी हमारे 2 स्टूडेंट्स, बल्कि अब 4 हो जाएंगी, जो कि मदर्स थी जिनका 10-10, 15-15 साल का गैप था और उन्होंने ना सिर्फ एडमिशन लिया बल्कि स्कॉलरशिप लिया। और अभी उनमें से एक जिनका 15 साल का गैप था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, वो $2.5 लाख पे फैंग में जॉब कर रहे हैं। जिंदगी में गैप नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आज की दुनिया में आप इजीली फिल कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर। नोबडी आस्क अबाउट द गैप। इस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट बोल रहे हैं जी। सर मैं आई एम करेंटली स्टडिंग 4th सेमेस्टर इन सिविल इंजीनियरिंग, तो क्या मैं इस डोमेन में आई कोड गुरु ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल जी, आई कोड गुरु बनाया है ही इस डोमेन के लिए है। अभी हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि केमिस्ट्री के ग्रेजुएट हैं और वो अमेरिका जा रहे हैं इंशाल्लाह पीएचडी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एआई सीख ली है। तो नाउ दे आर हाई इन डिमांड। दे विल यूज एआई टू सॉल्व केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स। तो अगर आप कोडिंग सीख लें और एआई सीख लें तो यू विल बी वन ऑफ दोज फ्यू जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग भी आती होगी और एआई भी आती होगी। तो आपकी ओके बहुत सर, ज्यादा थैंक यू। डिमांड होगी। थैंक यू सर। वेलकम जी। जी नेक्स्ट। तो जिस तरह अभी हमारे इस साल भी जो स्कॉलरशिप हुआ है उसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जिन्होंने कभी एआई नहीं की हुई, प्रोग्रामिंग भी कभी नहीं थी की। उनमें एक बायो इंजीनियर है, तो उनका भी कोडिंग से कोई खास लेना देना नहीं था। उसमें फिजिक्स के लोग हैं, मैथ के लोग हैं, स्टैट के लोग हैं, और अमेरिका में इनको एआई में स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। तो उसकी रीजन क्या है कि उन्होंने साथ कोडिंग सीख ली, एआई सीख ली, तो उसको फायदा हुआ। जी रिजवान। सर मैंने रिसेंटली एफएससी आईसीएस किया सर। सर मैं अब बीएस एआई करना चाहिए या सर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए सर? जो मर्जी कर लो, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, सर लेकिन ज्यादा कैरियर में हमेशा आपको बीएससीएस करना चाहिए। कैरियर में याद रखें जो मोस्टली जॉब्स हैं, इवन सिलिकॉन वैली में भी एआई की जॉब्स लेस देन 1% हैं। तो जी सर। अपना कैरियर कोशिश रखें जितना ज्यादा से ज्यादा जनरल होगा उतना बेहतर होगा। अगर आप सही सीएस सर। ग्रेजुएट हैं तो आप सिलिकॉन वैली की 100% जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एआई हैं तो आप लेस देन 1% पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो सर। आपको वो ओके चीज होना, आपको वो बंदा होना चाहिए जो प्रोडक्ट पूरे का पूरा बना सकता हो। एआई तो हर एक को आ जाएगी। जी सर। ठीक है, तो एआई इज जस्ट अ कमोडिटी। जिस तरह आपको इंग्लिश बोलना आती है आपको एआई भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए एआई इज नॉट अ डिस्टिंक्शन। जी नेक्स्ट। जी चैट में कोई क्वेश्चन है?
अगर तो वो रीड कर दें जुबैर। ये सर यही क्वेश्चन था कि इफ अ स्टूडेंट consistently maintains 3.5 CGPA, remain disciplined throughout BScs program, attends lectures by iCode Guru and follow the career advice of Dr. Zafar Shahid in his counseling videos, can they realistically secure a position at FANG companies without pursuing a master's degree? हाँ जी, अमेरिका जो 99% लोग आते हैं फैंग में वो मास्टर के थ्रू आते हैं, वो डायरेक्ट जो हायर नहीं होते पाकिस्तान से। अब अभी तक फैंग कंपनीज पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करती कि इनके इंजीनियर्स इतने अच्छे हैं। हमारी रेप्यूट इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पाकिस्तानी है इसलिए। तो इसलिए मास्टर इज द इजीएस्ट रोड। और अमेरिका में लाखों स्कॉलरशिप होते हैं, अगर आपका थोड़ा सा भी रीजनेबल रिज्यूमे है तो देयर इज अ बिग चांस कि आपको मिल जाएगा। जी सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने मतलब कोडिंग के हवाले से और मैराथॉन्स वगैरह कोडिंग मैराथॉन्स के हवाले से बताया, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस सेशन मतलब ज्वाइन किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिन्हें मतलब कोडिंग का बेसिक आइडिया भी नहीं है। मतलब कुछ जैसे सिविल के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके रिलेटेड आई कोड गुरु क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, काइंडली इस बारे में आप बता देखें, दें। हाँ, अगर किसी को कोडिंग नहीं आती तो उसमें और एमए आर्ट्स में कोई फर्क नहीं, बोथ आर इक्वली जॉबलेस इन टूडेज इंडस्ट्री। अगर बायोलॉजिस्ट को कोडिंग नहीं आती ना तो उसका आज की इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, आज की इंडस्ट्री में उसके लिए कोई जॉब नहीं है। तो मैकेनिकल, सिविल, सब डिपार्टमेंट्स, अगर आपने मोर प्रीशियस देन गोल्ड होना है तो कोडिंग सीख लें, एआई सीख लें, एंड देन गो लाइक अ किंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर आपने ये कहना है कि मैंने डिग्री कर ली और जॉब नहीं मिल रही कोडिंग ना, लेकिन बगैर कोडिंग के आपके लिए दुनिया में कोई जॉब नहीं है। टेक्नीशियन लेवल की जॉब्स हैं जिनकी सैलरीज भी कम होती हैं और जिनमें जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, क्योंकि उसमें लर्निंग कर्व बहुत कम होता है। तो 5 साल बाद आपके पेरेंट्स देने की बजाय किसी जूनियर को हायर कर लेंगे जिसे 2 महीने में ट्रेन भी कर लेंगे। तो इसलिए उन सब लोगों के लिए मैं अभी बताना चाहता हूँ, जब उनके पास टाइम है लाइफ में, कि अपनी ये जो अभी अगर आपको कोडिंग नहीं आती, एआई नहीं आती, तो ना सिर्फ ये सीखें और बल्कि इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। और आई कोड गुरु पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इसमें आपके लिए हेल्प करेगा। सेम इज फॉर बीएस मैथमेटिक्स। हमारे मैथमेटिक्स के काफी सारे स्टूडेंट्स अमेरिका आ रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, तो उन्हें कोडिंग अच्छी आनी चाहिए। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने जो हैकाथॉन है वो ज्वाइन किया है, और उसमें जो मेरे टीममेट हैं वो तो गूगल मीट में करते हैं, और उसमें जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो उसकी तो मुझे यानी कि समझ सही से नहीं आती और मैं सही से इंग्लिश बोल भी नहीं सकता। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं अभी उसी टीम में रहूं या कोई और ज्वाइन करूं जो, या अभी मुझे तो इंग्लिश की सही समझ नहीं आ रही। यार, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो ये आपका मसला नहीं है, ये उनका भी मसला है। तो आप बेशक जाएं टीम में, शोर मचाएं, समझें जितना समझते हैं, एंड में देखें, उनको नोटिस करें इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में इस वक्त है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा उस वक्त सीखता है जब जब वो चैलेंजिंग सिचुएशन में होता है। तो आप तो हर महीने माशाल्लाह हैकाथॉन में जाते हैं, तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द हैकाथॉन्स। तो इसलिए परेशान ना हो, बस जितना परफॉर्म होता है आराम से उतना कर दो। बिल्कुल। ओके और मैं सर, इसमें थैंक ये यू। कहूंगा, आप ना उसमें बार बार उनको बताएं। मतलब अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, राइट? ये कोई गलत बात नहीं है कि आप इंग्लिश समझ नहीं। उनको बताएं कि मुझे समझ नहीं आ रही, कैन यू स्पीक स्लो, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू राइट, राइट? और और उनको ये बताएं कि यू आर इंटरेस्टेड, आप काम करना चाह रहे हैं, बट यू आर गेटिंग ब्लॉक्ड क्योंकि आपको चीज समझ नहीं आई, राइट? अगर इसमें से अगर आपको कोई बंदा फिर बात समझाए फुल, देन ट्राई टू परफॉर्म वेल। ट्राई, वो जो आपको टास्क दे, अगर आपको समझ आ जाए फिर उस टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करें। यहाँ से आप वो रिलेशन बिल्ड अप करेंगे, राइट? कि कोई उनमें से कोई एक होगा जो आपको गाइड करना शुरू कर देगा, उनमें से कोई एक होगा प्रॉबेबली जो आगे आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, बट देन यू नीड टू रिस्पॉन्ड,
राइट। जी अगर जी वो समझ नहीं आता तो फिर आप हैकाथॉन वाले चैनल में आए, वहां पर लोगों से पूछें, बट देन ट्राई टू परफॉर्म। और ये जो आप रिलेशन इस तरह डेवलप करेंगे, इट वुड बी वेरी लॉन्ग बेनिफिशियल फॉर लास्टिंग। यू। अच्छा, इसमें एक ट्रिक ये होता है कि आप उन्हें कहें कि जो मुझे काम दिया गया है, कैन यू सेंड मी इन राइटिंग, कैन यू राइट दैट, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश इज डिफिकल्ट फॉर मी। तो आप इस तरह से उन्हें कह सकते हैं। और या अगर उनमें से कोई इंडियन है तो आप उनसे डायरेक्ट उर्दू भी बोल सकते हैं, उसकी उर्दू आती होगी उसको भी। तो चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, शुक्रिया। थैंक यू। तो जिन साथियों को पता नहीं है, तैयब रेहान, तैयब आप अभी एफएससी में हो या एफएससी भी स्टार्ट नहीं की? नहीं सर, मैं एफए में हूँ, सिंपल हाँ, आर्ट्स। तो ये एफए में हूँ। तो माशाल्लाह आप इनका नाम नोट कर लें, ये कुछ अरसे बाद गूगल में होंगे, क्योंकि ये हाईकोर्ट गुरु पे आ रहे हैं। और ये इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये ऑब्वियसली ये टेक्निकली भी ग्रो करेंगे, इंग्लिश में भी ग्रो करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स भी बिल्ड करेंगे, एंड देन ही विल बी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल। जी नेक्स्ट। सर ये चैट में क्वेश्चन है कि डज आई कोड गुरु गाइड स्टूडेंट्स फॉर डिजाइन फील्ड, यूएक्स डिजाइन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन एक्सेट्रा? देखें, ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम नॉर्मली टेक्नोलॉजीज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इन डिजाइन में जाने के लिए, गूगल में इन डोमेन में जाने के लिए भी आपको ये चीजें इतनी अच्छी ना आती हैं तो कोई मसला नहीं। इससे जो पहला स्टेप है, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। हम फोकस करते हैं कि आप क्या कहते हैं, जिस आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो, हम इस पर फोकस करते हैं कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट से कम है तो दिस इज अ ब्लॉकर फॉर यू। और आपको रोजाना टाइपिंग करनी चाहिए ताकि आप दूसरे बंदे से कम 4-5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव, क्योंकि नॉर्मली लोगों की टाइपिंग स्पीड 20, 30, 40 वर्ड पर मिनट होती है। और आप लोग भी अपनी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम लॉजिक बिल्डिंग पे, जिसे लीड कोड कहते हैं, उस पर ज्यादा जोर देते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग आपको आनी चाहिए। तो जब आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाते हैं, तो वहां पे जब हैकाथॉन में पूरे का पूरा प्रोडक्ट बनता है तो उसमें यूआई यूएक्स भी आता है। तो मेरे ख्याल में कि अगर आप हैकाथॉन्स में जाएं तो आपको वहां पे इन चीजों के बारे में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी लर्न करने की भी और अपने आप को शोकेस करने की भी। जी नेक्स्ट। ये सर एक क्वेश्चन है चैट में कि अगर हमारे पास हैकाथॉन से मुतालिक रिक्वायर्ड स्किल नहीं है तो हम फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ लर्नर? ऑफ कोर्स, आपको जीरो नॉलेज होना चाहिए हैकाथॉन में जाने के लिए। आप प्लीज एटलीस्ट अगर आप गूगल कर सकते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना सकते हैं, तो आपको हैकाथॉन में जाना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है फिर तो आपको गूगल में जॉब करनी चाहिए ना, फिर आप हैकाथॉन में क्यों जाएंगे? तो हैकाथॉन में जाना ही इसलिए है कि आप लर्न कर सकें ज्यादा से ज्यादा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर चैट में यही लास्ट क्वेश्चन था। आप सब हमारे साथ मौजूद हैं, वी हैव ओवर 50 मेंबर्स, सो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आप सिलिकॉन वैली के एक प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, जो भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं पूछें। सर एक चैट में क्वेश्चन है कि शुड वी अप्लाई फॉर मास्टर्स और पीएचडी आफ्टर आवर बैचलर्स विद स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल? देखें, आपका गोल होना चाहिए आपने यूएस में आना हायर स्टडीज के लिए, स्कॉलरशिप पे। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ, मैं तो दोनों में अप्लाई करूंगा ताकि स्कॉलरशिप के चांस बढ़ जाए। वालेकुम सर, सॉरी फॉर लेट रिस्पॉन्स, लेकिन ये तैयब रेहान जो आगे आपने बताया वो एक्चुअली हमारी ही टीम में, और मैं भी मतलब पाकिस्तान से, मेरी कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको साथ लेके मतलब चले। थैंक यू जी, थैंक यू।
जी नेक्स्ट। सर एक और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लीड कोड प्रॉब्लम्स इज अ डिसेंट नंबर? यार अगर आपको महीने का 1 पाव गोल्ड सैलरी मिलनी हो तो उसके लिए कितने लीड कोड करेंगे आप ताकि वो मिल जाए? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सर एक और क्वेश्चन है कि हेलो सर, आई एम बायोमेडिकल साइंस स्टूडेंट लास्ट ईयर, आई वांट टू इंटीग्रेट माय डिग्री विद एआई for data analysis in medical field and bioinformatics. How can I avail the master's scholarship opportunities in United States? पहले तो आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो कि प्रोफेसर along with few American, few European and hundreds of Indian CVs आपका CV शॉर्टलिस्ट करें आपका इंटरव्यू लेने के लिए। उसके बाद आपका प्रोफाइल इतना अच्छा हो कि जब वो उनमें से उसने एक ही बंदा उस फंडिंग पे रखना हो तो वो अमेरिकन को छोड़ दे, यूरोपियन को छोड़ दे, इंडियन को छोड़ दे, जिनकी जो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के हैं, जिनके प्रोफेसर को भी वो जानते होंगे इंटरव्यू लेने वाले, वो उनको छोड़ के आपको सिलेक्ट करेंगे। नहीं, दिस स्टूडेंट इज स्पेशल। ये बाकी तो मैं देखता रहता हूँ, GPA 4 अच्छी यूनिवर्सिटीज के बच्चे में देखता है, तो ये स्टूडेंट को स्पेशल है। तो फिर आपको अब आप अमेरिका आ जाएंगे तो अपना प्रोफाइल उस लेवल का करें। तो क्या करें, जब वो प्रोफाइल अच्छा होगा तो देन यू विल बी, इट विल बी वेरी क्लियर, जो भी बंदा आपको देखेगा उससे पता चल जाएगा कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट और वो आपको सीरियस लेगा। ये अवैध साहब, हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी भी 1 भी रुपए की बैंक स्टेटमेंट शो नहीं की। अमेरिका आने के लिए बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी होती, जो अस्सलाम स्कॉलरशिप पे आ वालेकुम। रहे होते हैं अस्सलाम आपको, वालेकुम क्योंकि सर। आपको यूनिवर्सिटी लेटर देती है कि जी इसे बैंक स्टेटमेंट नहीं करनी। जी नेक्स्ट अस्सलाम कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। I am Awais Nazir from UT Texla doing software engineering. Sir, apart from studies, I am working on being a data scientist. I am following a systematic way to be a data scientist and completed my data analysis and working on machine learning algorithms. तो मुझे पूछना था कि मैं किस तरह के हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करूं। मुझे फोकस करना चाहिए डाटा एनालिसिस के ऊपर या उस तरह के हैकाथॉन्स में मुझे फोकस करना चाहिए जो कि देखिए, आप डाटा, लेट्स टेक अ स्टेप बैक, आप डाटा साइंटिस्ट क्यों बनना चाह रहे हैं? सर मशीन लर्निंग एआई आप मशीन ज़्यादा लर्निंग क्यों चाहिए करना चाह रहे हैं? सर। एआई शौक है ना मेरा, मैंने कुछ ये एआई शौक में नहीं कुछ है, छोटे ये छोटे। नहीं, ये शौक नहीं है, ये फैशन है आजकल। जिस तरह जब हम ग्रेजुएट कर रहे थे तो यूटी टेक्सला पूरी की पूरी टेलीकॉम करना चाह रही थी, और ये शौक 4 साल बाद खत्म हो जाएगा, कोई नया ट्रेंड आ जाएगा, क्या पता ब्लॉकचेन आ जाए, Web 3 आ जाए। तो हमें पहली बात समझने की जरूरत है कि लाइफ गुजारने के लिए वो फील्ड, कोई भी फील्ड ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो कि बहुत फैशनेबल है। सही है, एआई तो सबको आती होगी, डाटा साइंटिस्ट सबको आता होगा। आपकी डिग्री किस चीज में है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो सिलिकॉन वैली में जॉब्स हैं, लाखों जॉब्स हैं सिलिकॉन वैली में इस वक्त, हर एक की सैलरी लाखों डॉलर में है, वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। उनमें से लेस देन 1% जॉब्स जो है वो डाटा साइंटिस्ट की है। तो मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ कि मशीन लर्निंग से भी बहुत पहले आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। दैट इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दैट इज जिसकी जॉब्स है। ठीक है, कोर मशीन लर्निंग जो है उसकी जॉब्स इंतहाई कम है, इंतहाई कम है, पूरी दुनिया में कम है। दूसरी चीज ये है कि आपका जो लाइफ में गोल है वो है टू लैंड ऑन अ जॉब विच ऑफर्स अ गुड सैलरी। हर बंदे का ये गोल होता है, बेसिक गोल यही यही है ना। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैंने गूगल में जाना है, मैं क्या करूं? मैंने एक ऐसी कंपनी में जाना है जो कि मुझे साल की 3-4 लाख डॉलर सैलरी दे दे, बचाए उसके लिए मैं क्या करूं? मैं उसके लिए मैं हर वो काम करूंगा जो वो कह देंगे, बस मैंने जाना है उसको। दैट इज द मेन प्रोफेशनलिज्म, दैट इज व्हाट यू नीड। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल का इंटरव्यू क्या होता है और उसे प्रिपेयर कैसे करना है।
ये बात याद रखना कि अमेरिका आने के बाद कोई भी गूगल का इंटरव्यू, किसी के पास तैयारी नहीं होती कोई 6 महीने बैठ के इंटरव्यू क्लियर करे। आज की अभी इस टाइम अपनी डिग्री के साथ आपको गूगल का इंटरव्यू क्लियर करना चाहिए, डाटा साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी ओके सर, जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। मतलब मैं जो कोर सब्जेक्ट है जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, इस साइड पे ज़्यादा फोकस करूँ। बिल्कुल भी इस चीज पे फोकस ना करें, सिर्फ जीपीए मेंटेन करें और ये पहले पता करें कि गूगल में जाने का तरीका क्या होता है ओके और उसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी होती है और वो इंटरव्यू तैयार करें। और ओके सर। आई कोड गुरु जो है वो दिन में 12 घंटे गूगल के इंटरव्यू की तैयारी करवाता है। तो अगर आप आई कोड गुरु पे आते हैं तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो गूगल का इवन एआई की टीम का इंटरव्यू भी जो है वो एआई का नहीं होता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यस सर, मैंने फॉर्म फिल कर दिया स्लैक के लिए, होप सो जल्दी ज्वाइन वेलकम कर लूँगा। ठीक है, बिल्कुल ओके जी। ओके नेक्स्ट सर। जी सर, चलें एक चैट में क्वेश्चन है। जी जी। जी। If I am joining a hackathon, I know what benefits I am getting. But in hackathons, I have seen many old CEO, founders, and professionals participating. What benefits are they getting? I am curious. They all seem well settled according to their LinkedIn files. लॉट ऑफ देम दे जस्ट कम टू हायर द स्टूडेंट्स। जिस तरह अभी जो जनवरी में हैकाथॉन हुई है तो इसमें हमारे एक स्टूडेंट को अमेरिका से हायर किया गया और एक स्टूडेंट को यूके से हायर किया गया। तो लॉट ऑफ देम दे कम फॉर हायरिंग। जी नेक्स्ट। सर चैट में इतने क्वेश्चंस थे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम रिमशा, आप बोल रही थी आपका कोई क्वेश्चन है? जी वैसा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी कंटेक्ट यू इफ वी हैव क्वेश्चन। अगर आप आईकोड गुरु पे आ रहे हैं तो मैं वहाँ पे आता रहता हूँ, रोज ही आता हूँ। तो यू विल हैव ऑल द टाइम टू आस्क मी क्वेश्चंस। तो उसके अलावा मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं होता। उसकी रीजन है कि आईकोड गुरु पे हमारे पास 22,000 स्टूडेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली हमारी अपनी जॉब्स भी होती हैं, तो वी डोंट हैव टाइम टू आंसर एवरीबॉडी इंडिविजुअली। जी एनी अदर क्वेश्चन, एनी फीडबैक? क्या कुछ आप लोगों की कुछ स्ट्रेटेजी कैरियर गोल्स के लिहाज से चेंज होगी या आप लोग अपना कोई कैरियर गोल बनाएंगे? तो बस मैं आखिर में एक बार याद करवा दूं कि जब गाड़ी बनानी होती है तो कुछ लोग चिंची के इंजीनियर बन जाते हैं और कुछ लोग मर्सिडीज के इंजीनियर बनते हैं। तो लेकिन ये जो दो टाइप के इंजीनियर हैं जो दोनों गाड़ी बनाते हैं, इनका कैरियर प्रोफाइल, कैरियर ट्रेनिंग, स्किल सेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, इंटायरली डिफरेंट होता है। तो इसी तरह जो लोग दुनिया की अच्छी कंपनीज में जाते हैं उनका स्किल सेट जो है, जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल उनसे डिफरेंट होती है जो कि लो टियर की जॉब्स कर रहे होते हैं या लो लेवल की फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। तो अभी यूनिवर्सिटी में आपके पास टाइम है कि आप लाखों डॉलर की सैलरी के लिए अपने आप को तैयार करें या अपने आप को $10 पर आवर वाले प्रोजेक्ट के लिए तैयार करें। चॉइस इज योर्स। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप अपना टाइम, तो फिर आप अपने आप को उतना ही दूर करते जा रहे हैं किसी भी अच्छी कंपनी के हायरिंग से। ठीक है, तो डू नॉट थिंक अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो 4 साल बाद आप गूगल में जा सकते हैं। देर इज नो चांस, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की उसके लिए। तो जिन्होंने अच्छी कंपनी में जाना है वो यूनिवर्सिटी स्टडीज में उसको फोकस करें। तो जी थैंक यू एक और सो चीज मच मैं सर। बता दूं एज अ कंपैरिजन कि पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल टीचर बनना इंतहाई मुश्किल है एज कम्पेयर टू गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो अगर आप क्या कहते हैं कि अगर आप उसको गोल कर टारगेट करें तो मोर देन 90% चांस है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे।
उसकी रीजन ये है कि कंपटीशन बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों ने उतनी अच्छी तैयारी की होती है, तो इसलिए जॉब मिलना आसान होता है। जी अब्दुल वहाज, over to you. जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much for the session and valuable insights for today's session. मेरा सर बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बीएस में उनको स्टडीज में काफ़ी डिफिकल्टीज फेस होती हैं, लो सीजीपीएस होते हैं लेकिन टेक्निकली शार्प होते हैं, तो उनके लिए क्या सर कैरियर पाथ होना चाहिए? अगर तो सीजीपी बहुत ही कम है तो देखें, ये नहीं कि बेसिकली अगर आप लो प्रिविलेज क्लास से हैं और आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप पूरी जिंदगी अच्छा घर नहीं बना सकेंगे। अच्छा घर मीन के आप शायद लाहौर में 10 मरले घर भी ना बना सके, इस्लामाबाद में 10 मरले घर भी ना बना सके। तो इसलिए लो प्रिविलेज के स्टूडेंट के लिए बेहतर ये होता है कि वो बाहर आ जाए। तो उसके लिए आपको सीजीपीए कम से कम 3 चाहिए। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि आप जॉब के साथ साथ मास्टर कर लें कहीं ऐसी जगह से जहाँ पे सीजीपीए आपका 3 से ज़्यादा आ जाए, एंड देन बेस्ड ऑन दैट सीजीपीए यू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो आपको मिल जाएगा। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू सो मच. तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं ऑलरेडी। श्योर सर, मैं आई विल गेट इन टच विद देम. चलें जी, ओवर टू द होस्ट। So it was amazing. Thanks UD Texla for the opportunity. We are obliged. Thank you so much, sir, Dr. Zafar and Dr. Rizwan. It was really an informative session. It really means a lot. Thank you very much, ma'am. From my side also, thanks for providing this opportunity. Thank you, sir, Rizwan, and thank you, Dr. Zafar Shahid, for your time and valuable guidance. I hope कि UAT Texila के students को ये पता चला होगा कि where do they stand and where they should be, and वो international opportunities को explore करेंगे. अगर आप लोगों के मजीद सर डॉक्टर जफर से या डॉक्टर रिजवान से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग स्लैक ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने साइट पे रजिस्टर कर दिया है या फॉर्म फिल कर दिया है तो उनको ईमेल आ जाएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन। Allah Hafiz.